मुझे लग रहा है ना आप लोग सिर्फ सुनना पसंद करते हो. ठीक है. सो वी हैव आवर गेस्ट फॉर द डे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू जस्ट रेज योर हैंड निकिता if you are visible. Okay. I hope I'm visible. I have one doubt. Yes, yes, go ahead यार, बताइए. For getting OIR one, what should be our accuracy out of 100? देखो है ना, फॉर OIR1 इट इज एडवाइजेबल टू स्कोर मोर देन 80% क्यूमुलेटिवली. मतलब दोनों मिला के आपको मोर देन 80% लेकर आना होता है. ठीक है, क्लियर. Okay. तो आप अगर दोनों मिला के, जैसे मान लो अगर 100 क्वेश्चन है, दोनों मिला के 50-50, सो दैट्स इट. ठीक है, उतना ही चाहिए होता है. क्लियर. एंड लेस देन अराउंड 70% या 65% एंड अबव इट्स है ना OIR2. फिर उसके बाद फिर देन OIR3, 4, 5. क्लियर. एंड उसके साथ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं फॉर PPDT एंड अदर थिंग्स. वो सारे DIPR लेवल की चीज़ें. तो एज अ कैंडिडेट वी शुड नॉट बॉदर मच. ठीक है. ओके. सो वी हैव आवर गेस्ट ऑफ द डे टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, रिक्वेस्टिंग ऑल टू टर्न ऑन देयर कैमरास, क्योंकि है ना फिर क्या मज़ा है ना, आप लोग बस खुद ही खुद बात कर रहे हो अपने आप से. ठीक है. सो लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मिस निकिता. शी इज़ देयर विथ अस नाउ. So, first of all, we welcome you on board on behalf of whole Culton team, and we congratulate her on behalf of whole team for getting back-to-back recommendations. And let's know little bit about her from जितना मुझे पता है. बाकी तो she will also convey a lot about her. So she got recommended in her first attempt from SSC IT entry. Thereby, she also gave another two SSBs where she couldn't make it. Thereafter, she again gave two more SSBs and she again got recommended back to back. So first was for SSC IT, second was for SSC Tech Army, and third was for SSC GSX Navy के लिए. So those who are going for Navy GSX or Navy whatever entry you are going for, she will be your course mate in the upcoming days. And more importantly, इन सबसे ज़्यादा ये आपके है ना, मतलब अभी एज अ गेस्ट टॉक्स में भी रहेंगे, तो शी विल गिव यू लॉट ऑफ टिप्स एज वेल. सो हार्टिएस्ट वेलकम निकिता ऑन बिहाफ ऑफ होल टीम. Mike. Thank you, Pallav, for such a good introduction. Hello, guys. How's everyone doing? एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक आई होप, क्योंकि कैंडिडेट्स अभी थोड़ा कम बोलेंगे, एंड में डाउट्स भर भर के लेकर आएंगे. सो निकिता, बिफोर वी स्टार्ट है ना एनीथिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो कैसा लग रहा है #3 रिकमेंडेशंस के साथ. बिकॉज जनरली एक बार होना ही मुश्किल होता है. आपने 3 बार एंड जॉइनिंग दैट इलीट क्लब, कि हाँ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार होंगे हम. Feels good. Like, it's extremely good when you get the choice yourself which arms do you want to join. And it's an honor, like, getting recommended for both the services. Feels good. Great. So Nikita, we will dive first of all in your first recommendation, because you were a fresher. यहाँ काफ़ी सारे candidates fresher हैं और they get this difficulty कि सर initial first SSB की तैयारी कैसे करें. So what was your approach? क्योंकि let me tell all the audience, she joined after her recommendation, after her 2 not recommended attempts. Then she joined for our interview classes. So पहले अटेम्प्ट में आपने खुद से क्या किया है ना, बिकॉज एवरीवन वुड लव टू नो दैट पार्ट. Yeah, so in my first attempt as a fresher, most people are just concerned about getting screened in. तो सबको वही करना होता है कि स्क्रीन इन हो जाए, फिर देख लेते हैं वापस क्या होगा आगे. तो that wasn't me. I was not that person. I was sure I'll get screened in. So that was a confidence that I carried. बाकी what I did different from other freshers is I knew कि stage 2 क्या होता है, how it will progress, क्या करना होता है. Then I also practiced my psych test. Like, time practice शायद ही कोई fresher करके जाता है, because they are like, एक बार इन तो हो जाए, इन तो होंगे ही नहीं. So I was not that. So this thing which I did was कि I just knew the procedure and I practiced थोड़ा सा उसके लिए. So that is something that you can do differently from the freshers, because मेरे group में like us freshers were 9. So I just saw people, only 1-2 people were there who actually prepared for SSB कि क्या होता है, psych test में क्या करना है. बाकी सब were just asking अच्छा सेल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं.
तो ये सब आप पढ़कर जाओ, एंड नाउ दैट यू हैव जॉइंड एज अ फ्रेशर फॉर कल्ट एसएसबी, तो यू माइट बी गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ नॉलेज फॉर दैट. तो अपार्ट फ्रॉम दैट बस यही है यार, पता करके जाओ करना क्या है, कैसे करना है. फ्रेशर अटेम्प्ट इज जस्ट केक वॉक फॉर पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड, एंड ट्रस्ट मी बेयर मिनिमम भी इनफ होता है फ्रेशर में रिकमेंड होने के लिए, स्पेशली गर्ल्स. तो या लाइक दिस इज व्हाट. सो बेसिकली नोइंग द प्रोसेस है ना, एंड क्योंकि जनरली कैंडिडेट्स यही गलतियां कर देते हैं कि प्रोसेस को हम देखने के लिए जाते हैं 5 दिन के लिए, यार वो उसके लिए आपके पास माहौल है ना, उसके लिए आपके पास यूट्यूब है, कल्ट है, सब लोग हैं, तो मेक श्योर दैट आप वो गलती ना करो. एंड जैसे निकिता ने बताया, दिस वाज हर लैंडमार्क थिंग जो शी वाज अवेयर. सो निकिता, टेल अस, आफ्टर यू गॉट recommended, we'll Yeah. dive later into your medicals part. So you couldn't make it. So what were the probable reasons which you felt? Like आपको क्या लगता है, और जनरली कैंडिडेट्स को नहीं करनी चाहिए अपने हिसाब से जो आपने गलतियाँ करी, बिकॉज सब लोग तो अच्छे अच्छी चीज़ की तारीफ करते हैं, बट गलतियों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंडिडेट्स शुड नॉट कमिट द सेम. द मेजर रीजंस दैट आई सजेस्ट जो मैंने गलत किया, विच आई फाउंड कि गलत है ही, दैट इज बीइंग नॉन कोऑपरेटिव एंड बीइंग डोमिनेंट. लाइक पीपल आर मोस्टली कंसर्न कि लाइक दे नीड टू show up themselves, like the assessor should be seeing them, they should outstand everyone. So that is one big mistake that everyone does, be it repeaters of 11 times or 12 times. If they're not getting recommended, they're surely doing this mistake only. Either they are underperforming or either they are outperforming, and you need to be on the average level. They want average people. So that is what I believe, because in my fresher time I was very, सब देख रहे हैं मुझे, मैं दिख रही हूँ. So I thought the same technique would work, but as a repeater it didn't work, and I found out later from other people also, from this Pallab sir also, that you don't need to be seen. You don't have to outperform everyone. Just do average. So that was it. Do not be over dominant. Be cooperative. Cooperative and confidence are the only two things that you will need to get through any SSB for any forces. Yeah. So this is करेक्ट. what. सो हाईलाइटिंग योर पॉइंट, बेसिकली एज अ रिपीटर काफ़ी लोग सोचते हैं कि हाँ हम थोड़ा कुछ करते हैं अलग से या सेम ही करते हैं, बट शी Mhm. है ना रियलाइज दिस थिंग एंड इवेंचुअली डिड. सो यार नाउ टेल अस अबाउट योर पर्टिकुलर एस्पेक्ट, है ना, क्योंकि अपन थोड़ा डीप डाइव करेंगे आपके पर्टिकुलर प्रिपरेशन ऑफ साइक, क्योंकि मैनी फीमेल कैंडिडेट्स आउट हियर दे आर गोइंग फॉर एनडी एंट्री, CDS, SSC, नेवी एंड वॉट नॉट. सो आपने साइक की प्रैक्टिस कैसे करी, और थोड़ा हमें स्टोरीज के बारे में बताइए. लाइक इन जनरली लड़कियों के TATs में है ना ज़्यादातर सोशल रिलेटेड ज़्यादा आती है, आपको ही पता होगा इसके बारे में. सो हाउ डिड यू वर्क ऑन दोज एरियाज एंड व्हाट इंटरेस्ट योर साइक प्रिपरेशन? So like I used to prepare psych very religiously. Like I was googling out images, then writing stories about it. Then from our group also, like I used to write stories about the pictures which were sent. And मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी story I'm sticking to my story. I used to read other stories also. कि अच्छा इस picture का ये perception भी हो सकता है. So if I'm getting the same picture in the SSB, then I used to write my perception as well as the others' perception, which I found better than me. तो दैट हेल्प मी अलाउड, मतलब बहुत ही ज्यादा उसने तो हेल्प किया कि मैं दूसरों के परसेप्शन अगर जो मुझसे अच्छे हैं तो आई एम एक्सेप्टिंग दैट कि अच्छा ये बेटर स्टोरी है. सो आई यूज टू राइट अबाउट दो स्टोरीज एंड आई मेड सम थीम्स. लाइक आई यूज टू राइट एवरीथिंग. मैंने थीम्स बनाए, देन आई यूज टू राइट अलग अलग परसेप्शन एक ही पिक्चर के. सो आई डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर साइट फ्रॉम द ग्रुप्स एज वेल एज आई वुड लाइक, मतलब आई टुक रिव्यूज फ्रॉम मल्टीपल पीपल कि सब क्या सोच रहे हैं मेरी स्टोरी के बारे में. So that helped me out a lot. Apart from that, time practice is one thing. Like it does not looks good in your psych test कि आपकी कोई स्टोरी आधी छूट गई, या आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन का एक पार्ट ही नहीं लिख पाए, या आपसे वर्ड्स मिस हो रहे हैं, या SRT आप नहीं कर पा रहे हो ज्यादा. तो टाइम प्रैक्टिस इज वन थिंग. लाइक द अमाउंट मैटर्स, डेफिनेटली मैटर्स, बट द क्वालिटी मैटर्स मोर. So that would come with practice, and I think Cult SSB provides everything. तो आप बस रोज प्रैक्टिस करो. That would improve your psych a lot. करेक्ट. सो बेसिकली देखो क्या होता है ना, जनरली पीपल फील दैट कि प्रैक्टिस नहीं करना है या प्रैक्टिस कम करने से भी चलेगा, बट शी रिलीजियसली डिड प्रैक्टिस. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द पिक्चर्स विच वी सेंड डे इन डे आउट, जो आपको स्टोरीज लिखने कहते हैं, दो इट इज़ गेटिंग रिव्यूड और नॉट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड अदर स्टोरीज एज वेल. काफ़ी कैंडिडेट्स व्हाट दे थिंक दैट कि हमारा स्टोरी रिव्यू नहीं हो रहा है तो हमें बॉयकॉट कर दिया जा रहा है, दे लीव ग्रुप एंड व्हाट नॉट, है ना. यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स. उनकी भी स्टोरीज रिव्यू कभी कभी नहीं होती थी, कभी कभी होती थी, बट शी यूज्ड टू प्रैक्टिस.
So yeah, we will dive more into your preparation for interview because since you were a repeater, and the best part of all is you were also part of this program. So how was your own preparation, and what all things you particularly looked on for your second recommendation वाले attempt, and क्या क्या चीज़ों का आपने अलग से ध्यान रखा? अलग से ध्यान मतलब व्हेन आई टुक दिस इंटरव्यू फ्रॉम काल्ट एसएसबी तो अलग से ध्यान मैंने यही रखा कि इंटरव्यू कैन बी वेग आल्सो इट कांट बी जस्ट बुकिश सो दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो like bookish is what you read in books like for SSB books whichever you refer like Natarajan sir's book तो उसमें जो भी लिखा होता है that is bookish and that was one of the interviews that was my navy interview that was bookish but my army interview was very vague so that was something that I looked up to and from the interviews I made sure that I'm writing things down whichever I'm not able to answer I'm writing that question and answer also so this was like बचपन में जैसे करते थे साइंस के आंसर्स तो उसमें मैंने क्वेश्चन लिखा देन आई यूज्ड टू राइट द आंसर्स फॉर इट क्योंकि मैं जवाब ही नहीं दे पा रही हूँ उनका वापस से and I used to read it multiple times before my SSB interviews both for army and navy there was a book which I made of interview questions and I read that about 10 times तो मुझे अगर उसमें से कुछ पूछ रहे हैं तो वो तो मैं बताऊंगी एंड अदर कुछ आ गया तो देन आई सी कि हो पा रहा है तो दैट इज वन थिंग दैट आई लाइक टू से कि आपको जो आंसर नहीं बन रहा है राइट इट डाउन डेफिनेटली याद रहेगा वो एंड जीके तो यू नीड टू वर्क फॉर अलग से so that is the other thing of the interview and GK does not matter I think your CIQ the questions related to you which you are not able to answer that matters and you should write it down your strength your weakness why are they strength and weakness of yours so these are all the things that matter a lot Correct. Nikita, tell us like now since you went from navy to army है ना काफ़ी कैंडिडेट्स का एक डिलेमा रहता है जनरली दे आस्क दिस क्वेश्चन कि सर मेरे तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स नेवी के रहे हैं मेरे मैक्सिमम आर्मी के रहे हैं सो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे सो हाउ डिड यू आंसर्ड इट एंड लेट मी टेल ऑल द ऑडियंस शी बिलोंग्स फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड बचपन से उन्होंने आर्मी देखा है एंड ज्वाइनिंग इनटू नेवी इज समथिंग बहुत लोग के लिए डाइसी रहता है मतलब बेसिकली जिनका आपका बैकग्राउंड नहीं है दूसरे फोर्स में जाना वापस होना सो हाउ डिड यू आंसर दोज क्वेश्चन क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट कैंडिडेट्स थिंक अ लॉट एंड पैरालाइज देमसेल्फ सो हाउ डिड यू हैंडल इट So I'll talk about my army attempt first because I attended it first. So not my interviewing officer, but my GTO was very interested in asking me this question. So he was asking me कि निकिता 3 attempts सिर्फ Navy के why are you coming here then go to Navy. So my answer was very simple and logical also because like my first SSC Tech attempt, so I could not give it because of my end semester. So that was just pure truth. And he understood कि अच्छा and then I told him straightforward सर CDS मेरे से clear ही नहीं हुआ. So then he was like, okay. So that's why I told him that this is my second SSC Tech, which I got shortlisted and now I'm attending. So he was satisfied कि चलो इसीलिए Navy के attempts हैं. Then talking about my Navy interview, there he was very much interested कि why Navy, your papa is in army, go to army, why Navy? So that I tackled by telling him some मक्खन about Navy की सर tech savvy force है, मैं tech graduate हूँ सर मिल रहा है सब. So he was like okay with that. So I just told him the specifications कि मैं CS graduate हूँ तो Navy में ज़्यादा काम आएगा and Navy अगर हम geopolitically देखें is more important right now. तो he was satisfied with that and I gave him details कि CS क्या क्या कर सकती हूँ मैं Navy के लिए. तो he was fine with that. Like you should give a supporting sentence with whatever you are saying. Like if you say you want to join Navy instead of Army, even though your papa is in Army, no, then you need a solid reason behind that. तो उसने नहीं पूछा फिर भी मैंने उसको बता दिया सर मैं टेक ग्रेजुएट हूँ CS की then I'll help Navy in this. So this is what I did. Good. You know, basically pouring all the reasoning ability together by telling a lot of technical terms. So that's a very good way to handle such questions and more importantly reasoning ability is the mother of all OLQs. We generally discuss the same कि आपके हर आंसर में रहना चाहिए बैकग्राउंड में otherwise what happens is you just beat the bush and rather than coming to the point you discuss something else. So yeah, Nikita, tell us about your है ना मतलब most trickiest part of your real interview which you felt in Navy as well as in Army. Generally जो candidates को भी लगे कि हाँ ये आंसर को मैंने इस तरीके से दिया which has sailed you through the SSB. ऐसा कुछ if you can remember. I'll have to think about it. Like, there was this question in Army. He asked me, okay, Nikita, tell me something that
something that only you know, something very important that only you have read, and please enlighten me with that. क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, सबको नहीं पता है. Tell me something about it. So I started with, maybe he wants to know something very much important that has recently happened in a country. So I said, sir, India, women in India. So he was like, अरे वो तो मुझे पता है, आर्मी में हूँ मैं. I was like, okay sir. Then he said कि मैंने पूछा कि सर elections बताऊँ, मेरे को सब पता है उसके बारे में. Then he was like, no, I'm barely interested in elections. Like he was giving me situations. I just told him, sir. Then I gave a witty answer to him, sir. I don't think there's something important जो आपको ना पता हो सर. तो आई वाज लाइक टेलिंग हिम कि सर देयर इज नथिंग लाइक दैट जो आपको ना पता हो, सबको ना पता हो, बिकॉज इफ इट इज समथिंग important then everyone would be knowing that. He was like okay with that. Then he again threw me one question ki, Nikita, tell me something that made you devastated. Like he'll ask you such questions कि आप आपकी कुछ नेगेटिव चीजें बाहर आए, लाइक आपसे नहीं बन रहा है, उसके फेस पे आपको दिख जाए ना, तो वो आपकी और मजे लेने लगता है वहां पे. So I just gave him witty answers. Like I had a lot of witty answers to give him. So I just told him, sir, there is no such situation. ना आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं है कि आप कभी इमोशनली एकदम एग्जॉस्टेड फील किया आपने जिंदगी में, इवन दो यू डिड इट. So I believe that my optimism na just got me through the army interview, because he was just continuously asking me कि कुछ भी नहीं उखाड़ा है कॉलेज में, no nothing you have done, nothing research you have done. So I was like कि sir, I was in NCC, तो ये सब भी किया है, तो just you have to be optimistic about yourself कि whatever you are accepting that and you find yourself competent enough for joining the forces, even though you don't have such achievements, because my PRQ was very simple. So that was like I was optimistic and confident about myself कि जो मैं हूँ, this is what I am. And yes, so Good. yeah. Very nicely covered this area. So Nikita, tell us now about your GTO wala thing. How exactly you worked on, because there are many females who generally feel GTO में किस हद तक जाया जाएगा, and do mention about your key areas which you focused on in your GTO preparation, because more importantly you prepared on your own this part, and also what all things you read for GD, lecture aid and whatnot. काफ़ी candidates बोलते please share your GD topic, so if you remember that as well, do share. काफ़ी सारे candidates का वो तमन्ना भी पूरी हो जाएगी. So like my GD topic, firstly I'll just talk about this GTO as a whole. So yes. what I believe is GTO matters the मतलब no strong words, but like GTO में आपको इतना overthink करने की जरूरत नहीं है. Just go with the flow. Like the basic series and the confirmatory series you might be knowing about. तो वो basic series considers GD, your GP, and your GOR and also PGT. तो these are the things you need to perform थोड़ा सा good. Like थोड़ा exceptionally well तो नहीं बोलूंगी, but good, average. बिकॉज इससे अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन दैट इज जीडी वो ही खराब होगा तो ही माइट नॉट नोटिस यू आगे की सीरीज में. तो जीडी में यू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इन जीटीओ, व्हाट आई बिलीव. वो बोलते होंगे कि एक में बेकार करके आगे अच्छा कर लो, बट जीडी shows your knowledge, shows that you worked hard for being here and shows that you are competent enough कि आगे भी जाओगे. तो जीडी में what I believe कि refer to different sources यार, refer to whatever is happening in the country, recently क्या हो रहा है, and just read 1 or 2 articles about it, multiple articles 2-3, because आप opinion लोगे दूसरों का, then आपका खुद का opinion form हो जाएगा. And if your English is good, you can put your points अच्छे से, then GD would be easy. So what I believe कि GD के लिए you need to थोड़ा सा work hard and read about the news. Articles would help with your vocab and all. So go through about it. My GD topic, if I talk about, so was this Assam clashes. कि why is Assam feeling alienated from whole India? So that was one, and I was confident for that topic because obviously I read about it. My father was posted in Assam, so that was easy for me. And apart from that, there was this women empowerment topic always there for girls. So that I already prepared and I was ready with all the indexes and statistics. आप गलत stats भी बोल रहे हो ना with confident there, तो आप फिर आप stand out करोगे सबसे. And trust me, I have used so many wrong stats there, but I had the name of index की ये index release हुआ है. So that is something not everyone prepares for, क्योंकि GD को इतना कोई भाव नहीं देता कि GD में मैं ऐसा करके क्यों सही बनूं. तो GD is something that you can score good points in by stating some stats. अपने points को stats के साथ add कर दो. That would increase the
क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ योर पॉइंट्स. तो दैट इज वन थिंग दैट आई रिमेम्बर्ड एंड आई डिड इन बोथ द अटेम्प्ट्स जिसमें मैं रिकमेंड हुई. If I talk about PGTR, perform averagely, even if you're Ma'am, not your voice is fluctuating. as being Nikita, there is action some break in your voice. मोड, बीइंग कि हाँ मेरे को नहीं आ रहा आइडिया पर मैं दूसरों की सुन के Nikita, there is इम्प्लीमेंट some breakage in your voice. तो कर रहा हूँ. ओ, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, much clearer. Oh, just a second. Is it okay now? Yes, it's much better. Wait. Better? Better. Yes, you can continue. Okay. Cool. Yeah, so I was talking about PGT. So PGT में like it does not matter what new ideas you're giving. Yeah, you are getting ideas. So you just see the structure, be in action mode कि हाँ मैं try तो कर रहा हूँ, मुझे ideas नहीं आ रहे, but I'm trying. तो I just used to see the structure. Don't look at the GTO कि हाँ भाई help कर दे, नहीं. Just see the structure. If you're getting ideas, good. If you're not getting ideas, just try and be at front and implement it. सुनो दूसरी. तो वो हेल्प करेगा. मेरे आइडियाज इतने खास नहीं थे, अच्छे भी नहीं आ रहे थे एज सच, पर मैं दूसरों की सुन रही थी. एंड ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहे थे, 2-3 बार दिया, बट बहुत बड़ा होता है पीजीटी, यू कैन गेट आइडियाज ऑल द टाइम. सो तो मैं आई वॉज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग अदर्स आइडियाज, लाइक आई वॉज इन एक्शन मोड ऑल द टाइम. यू कैन बी डल एंड बी पीछे की मेरे को चांस मिलेगा तो मैं आगे आऊंगी. यू नीड टू टेक इट. पीजीटी में आप डोमिनेंट मत बनो, जस्ट बी कोऑपरेटिव कि अगर तू कर रहा है, तेरे को आइडियाज आ रहे हैं, तो आई ऑल्सो ज्वाइन यू एंड आई जस्ट maybe just tie the knot. So this is what you can do for PGT. Apart from GP, there's a proper format for that. To follow that, GP just okay. मतलब he just sees कि how properly you are implementing the resources. तो वो सब तो आप already इतना practice कर चुके हो कि आप कर लोगे if you're preparing for it. And apart from that, GP के GT में don't try to be over dominant कि नहीं भाई तेरा ही solution लेने हैं. जस्ट ट्राई एंड कॉन्ट्रीब्यूट कि अच्छा ऐसा करते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं. जस्ट ट्राई एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. टेक इट एज अ नॉर्मल जीडी. डोंट ट्राई टू बी ओवर डोमिनेंट इन दैट. पीपल आर रिजिड समटाइम्स कि नहीं मेरा ही सोल्यूशन बेस्ट है. जस्ट लिसन टू अदर्स ऑल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट GORS तो यू शुड एंजॉय, लाइक ट्राई एंड हेल्प. फिक्शनरी हेल्प नहीं करने की, नीचे से धक्का दे रहे हैं, जरूरत है नहीं, फिर भी डोंट डू दैट. जस्ट ट्राई, जितना हेल्प कर सकते हो उतना करो. ऑब्वियसली डोंट आगे आगे हो, बीच में रहो कहीं पे. आगे भी जाने की जरूरत नहीं है, बीच में कहीं पे रहो. लास्ट भी आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज कुछ ज्यादा ही भला हो जाएगा. बी इन मिडल एंड हेल्प अदर्स. ऑलवेज प्रायोरिटाइज हेल्पिंग अदर्स, लिसनिंग टू अदर्स इंस्टेड ऑफ योर. सो दिस इज Correct. बेसिक. बहुत nicely she has told each and every minute point about GD, GP. She told regarding basic series and confirmatory series. For those who are not aware of it, basically basic series ये होता है जिसमें आपका GD, GP, the initial testing, GD, GP, PGT, GOR, right? So ये जो होता है basically these are 5 tests: GD1, GD2, GP, thereby PGT and GOR. करेक्ट. सो दीज आर बेसिक सीरीज. अगर आपने इसमें अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, सो मोर और लेस योर मोर देन हाफ ऑफ योर टेस्टिंग इज डन. उसके बाद जितने भी टेस्टिंग हो रहे हैं जहाँ पे आपके HGTs हो रही है, देन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क, लेक्चरेट, फाइनल ग्रुप टास्क, ऑल दीज आर कन्फर्मेटरी. सो पीपल फील दैट कि मैं लेक्चरेट के लिए दिन रात पढ़ूँ, बट होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्फिडेंस विच यू मैंशन राइटली. गलत भी बोलो बट मेक इट वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज हम भी कैंडिडेट्स को सजेस्ट करते हैं कि आपको रिपोर्ट का नाम याद रहना चाहिए या एटलीस्ट मिलता जुलता नाम, है ना. आप फैक्ट एकदम थोड़ा बहुत इधर उधर बोलने से भी चलेगा. Nobody can recollect everything. Okay, so Nikita, now mention about how did you performed well for your last recommendation, क्योंकि you hardly got any time, है ना. Let me tell this to all the audience. She got recommended, thereby she postponed her medicals
उसके तुरंत बाद शी वेंट फॉर अनदर एसएसबी फॉर नेवी, हार्डली अ सिंगल डे और सो, एंड देन शी रिपोर्टेड, देन शी अगेन गॉट रिकमेंडेड. सो हाउ वाज दिस बैक टू बैक रिकमेंडेशन इन अ स्पैन ऑफ 10 days? काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे सर अभी तो रिकमेंड हुई थी, and हमने जैसे ही डाला. तो टेल अस व्हाट वाज दिस रश मोमेंट एंड हाउ डिड यू मेक इट विद लाइक इन द लास्ट वन? Uh, like if I talk about this army thing, so I was like this was my first army attempt. So I was very conscious about ki okay, do I need to do something different from Navy? But that was all just bluff. ऐसा कुछ नहीं करना होता. All SSBs are same, be it any other forces. Air Force का I can't say because I've never been there. बाकी दोनों SSBs में I perform the same. मैं आर्मी में गई. I just made sure that army recommendation does not gets to my head. कि अभी तो रिकमेंड होकर आई हूँ एंड आई विल गेट रिकमेंडेड अगेन, which I did in my third attempt and I got confused out. So that was it. I made sure that I'm not overconfident about anything. And of course that I was tired कि अभी तो आर्मी हुआ है, but like Navy was my priority. तो I was like all ready for this because Navy join करना ही है. तो उसके लिए तो मैं और ज़्यादा better perform किया. My psych test was better than this army attempt. My interview was very much better than this army attempt. So I made sure my GTO performance was so average, just like in army attempt. But my interview and like psych, I tried to perform better. मतलब better, did all SRTs in और 68 SRTs in Navy attempt. आर्मी के लिए मैंने कुछ 50 पे रुक गई थी कि चलो हो गया, पर बाकी तो नेवी में मैंने बहुत इम्प्रूव किया अपने साइक में. मुझे ही फील हुआ कि आई एम राइटिंग बेटर स्टोरीज एंड मे बी दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, बिकॉज अब भी तो आर्मी के लिए लिखा है मैंने अच्छा and I got recommended. And I thought, what else I could add? So I was just trying to adapt to my performances in every task that I was doing. So that was it. So, Nikita, you told that you practiced a lot. So, tell कि आपने क्या exactly practice किया TAT में? Like generally candidates सोचते हैं हमें सिर्फ stories लिखना है. So how what all minute things you worked on, and more importantly, people say and हम भी बताते हैं micro actions डालो. So how did you work on that area as well? क्योंकि at the end of the day, whosoever makes it knows it very well कि कुछ substance होना चाहिए story में. So how was this preparation of that? Like mostly I used to practice female SRTs, I'm saying TATs, because whenever I Googled, no, like there was this PDF which was sent to me by one of the friend of mine. And apart from just looking at कि इनमें से मैं क्या क्या बना सकती हूँ, what I used to do different was कि एक तो मुझे आइडियाज एक ही, जैसे थीम इज एजुकेशन, तो आई शुड नॉट जस्ट गेट वन आइडिया कि ओके ही इज अ मास्टर और ही इज अ प्रोफेसर. मैं एजुकेशन से रिलेटेड ही लाइक मेनी सोशल थिंग्स क्या क्या हो रहा है अभी, लाइक न्यू इनोवेशन, न्यू टेक. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि एक ही थीम पर अलग अलग चीजें लिख ली मैंने, एंड देन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस स्टोरीज फॉर दैट. मैं पूरा वो नहीं करती थी. आई वाज जस्ट कि अगर ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, सम प्रॉब्लम इज देयर, देन हाउ डू आई सॉल्व इट. और ये जो है वो मुझे सिर्फ एजुकेशन थीम में हेल्प नहीं करेगा. एवरी थीम, इधर अ बिजनेस सेटअप और एनीथिंग, अ स्कूल फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल फंक्शन. तो ये ऐसी बेसिक सीरीज है जो मैंने लिख ली थी कि मुझे ये एक्शंस तो डालने ही है. इफ देयर इज अ स्कूल फंक्शन देन आई नीड टू राइट कि मेड टीम्स डेलीगेटेड टास्क, ये मुझे लिखना ही है उसमें. तो देयर वाज दिस थिंग कि ऑर्गेनाइजिंग में ये शब्द मैं यूज करूंगी, एजुकेशन में मैं ये यूज करूंगी, देन इफ आई एम मेकिंग सम ऑफिसर तो फिर मैं उसमें ये यूज करूंगी. तो दिस आई रोट डाउन. एंड फीमेल टैग्स तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है कि जिसमें मैं फीमेल को कुछ करते हुए बना रही हूँ, एंड फीमेल ही आते हैं, जितना भी वुमेन एंट्रीज हैं वो फीमेल टैग्स ही देंगे आपको. सो इफ यू नो कि यही आ रहा है देन प्रैक्टिस दैट वे. एंड देयर वाज दिस पीडीएफ आई मेड, जितनी भी पिक्चर्स मुझे ग्रुप से मिलती थी या कहीं से भी मिलती थी, आई मेड अ पीडीएफ और फिर वो मैं बार बार देखती थी. एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स सेम ही आई, रेपिटेटिव थी सारी. तो आई जस्ट मैंने कहा अरे ये स्टोरी तो पता है मुझे. आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट. उस टाइम मुझे कुछ नहीं, मुझे पता था ये मैंने किया हुआ. आई जस्ट रोट इट. तो ये बहुत हेल्प किया क्योंकि मैंने देखी हुई थी पिक्चर्स, और नहीं देखी भी होती तो समथिंग इज सिमिलर इन दैट, सम स्ट्रगल, सम एजुकेशन, सम सेटअप. तो उसमें मैं फिर वही स्टोरीज करती थी जो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ. Nothing. So Nikita, did you prepare for your blank story? Generally people prepare and it has to be prepared. तो आपने कुछ खुद से किया या it was very natural कि मैं हर recommendation में अलग-अलग लिख कर आऊँगी? No, nothing natural. Why would I lie? 12th story हमेशा सेम.
मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट से फिफ्थ अटेम्प्ट तक मेरी 12th स्टोरी हमेशा सेम रही है. एंड आई डोंट थिंक कि मैं कुछ वो फेक हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टू 11th में ऐसी थीम्स लिखती थी जो मेरी 12th स्टोरी से मैच करती है. तो दैट इज समथिंग दैट आई नेवर चेंज्ड, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वुड से माय लकी स्टोरी. कॉन्फिडेंस आउट में मैंने ट्राई किया था कि मैं कुछ अलग लिखूं, एंड आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट, सो आई गॉट So बैक you टू माय tried something new. Great. So या. what is your approach for blank story? Like not only for preparation, but like आप कुछ ऐसा PIQ के साथ relate करते थे? Because many female ask this question and even male candidates as well. So it's good that आप भी है ना clarify करो उस angle को, क्योंकि generally we clarified but still people है ना beat the bush. So what was your this thing exactly कि मैंने इस area पे target किया या कुछ ऐसा कुछ? No, matlab, like not just the 12th story, like people now also ask me question, my friends are like, do we need to relate our stories to PIQ? Now you have written something to related to football in your PIQ. अब वो football तुम्हें दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा TAT में, तो आप कहाँ से लाओगे, right? So this is something that I tell them it's not important, but if you are able to do it, like I wrote cultural captain in my school days, and there was this picture of school students, तो मैंने बना दी थी स्टोरी की organizing a cultural fest at school. तो दैट्स जस्ट अ चेरी ऑन टॉप. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप PIQ से ही रिलेट करो, क्योंकि अगर नहीं दिख रहा फिर भी आप ट्राई कर रहे हो, देन आप दिख जाएगा कि यू आर कोच्ड टू राइट समथिंग अबाउट योर PIQ. डोंट डू दैट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. इफ यू आर एबल टू डू दैट तो वो चेरी ऑन टॉप है, बस और कुछ नहीं है. यू डोंट नीड टू राइट अबाउट योर PIQ ओनली. ग्रेट है ना, बहुत बढ़िया तरीके से आपने हर एक माइन्यूट चीज़ कवर किया. वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी हैंड ओवर दिस माइक टू ऑल द कैंडिडेट्स जो काफ़ी डाउट्स पूछना चाह रहे होंगे. सो यार, हाउ वाज द डिफरेंस बिफोर यू प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू एंड आफ्टर ज्वाइनिंग कल्ट, बिकॉज यू वेर देयर विद अस फॉर अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, है ना. ऑल द ऑडियंस मैं बता देता हूँ, शी जॉइन फॉर मॉक इंटरव्यू, गेव हर फीडबैक एंड शी वॉज अ प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट. सो डू मेंशन अबाउट कि कैसा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा कल्ट में, एंड ऑल्सो व्हाट वाज द लर्निंग थिंग एंड वाज इट टू रियलिस्टिक टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्सेस? Yeah, this one thing, like because I got confused out from my third attempt, so I found out that there is some loopholes that I am not considering, and there is some change that I need to take, because मेरा fresher attempt में जो मैंने prepare किया था, that was more than enough for me to get recommended. But because मेरा नहीं हुआ third attempt में, that's why I got the suggestion of getting a mock interview done. So then I got to know कि अच्छा ये questions भी हो सकते हैं. This is also an area which can be asked in interview as a repeater, because repeaters को they grill. If you are second or third attempt, they might not grill, but मुझे कोई chance लेना ही नहीं था, so I just went for a mock interview. Then I found out कि this is also a trick, like the tricks that are there that exist जो interviewing officer use करता है. So I was already aware about that because I took the mock interview of Cult SSB. तो फिर उसलिए भी मैंने मतलब दिस मेड मी मेंटली प्रिपेयर्ड कि एनीथिंग कुड बी कमिंग एंड आई नीड टू हाउ टू टैकल इट. Like I got to know this term defense mechanism which I was using from sir, so I just worked on that. जितना भी review मुझे मिला, then I was continuously writing whatever sir was telling me. Then I made sure कि जो mistakes यहाँ मैंने इस interview में कर दिए, at least ये तो मैं repeat नहीं करूँगी वहाँ पे जाकर. And some new mistakes अगर आ गई and I got confused out again, तो मैं फिर वापस देख लूंगी जो भी है. बट ये वाली जो मिस्टेक्स जो मैं कर रही थी, नॉट ओपनिंग अप, शोइंग डिफरेंस मैकेनिज्म, स्टफ लाइक दैट, एंड आई गॉट टू नो अबाउट मेनी टेक्निक्स व्हिच आई कैन थ्रो एट द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, तो दैट आल्सो आई यूज्ड. देयर वर मेनी थिंग्स आई कैन रिमेंबर राइट नाउ कि जो भी आप बोल रहे हो, यू शुड नो अबाउट दैट एंड टेल अबाउट थिंग्स दैट यू वांट द इंटरव्यू ऑफिसर टू आस्क यू. So this was something that I got to know from this mock interview which I did. So it helped me out a lot कि as a repeater मुझसे क्या क्या expect कर सकते हैं वो, and as a previously recommended repeater क्या expect कर रहे हैं. So that is something that I believe helped me out a lot and getting me know about the new mistakes which I could be doing there. So ये सही था. Good. So very well told here about each and every portion of psych screening, GTO interview and whatnot. So what would be one piece of advice before like we ask the doubts from the candidates कि candidates को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और candidates को ये चीज़ें करनी चाहिए? If you have got some kind of checklist या आपने अपने दिमाग में प्रिपेयर किया होगा ऐसा कुछ कि हाँ ये चीज़ें करने से कैंडिडेट्स का जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाएगा. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू रूटीन of their लाइफ as well as it can be related to their SSB preparation,
it can be related to their work life or whatever they are doing, personal life, professional life. Mm, like two words, like all my friends who have been recommended, like we have come out with two common words because we know that is the most important. Is firstly, I told you earlier also, confidence and cooperation. These two things will get you through in SSB at least. Confidence and cooperation. Confidence in whatever you do, whatever you speak, and whatever you are performing there. Na, just be confident. Be it wrong, be it anything. Just be confident कि हाँ सर यही है. कितने planets हैं? अगर 8 ही याद आ रहे हैं तो 8, 7 है तो 7 ही हैं. So just be confident. And apart from that, don't be over dominant. Yeah, you don't need to be over dominant in any of the stages of SSB. Be cooperative always. बस यही मंत्र है. So basically, 2C, confidence and cooperation. I would like to add 3 more C's to that. Cool, calm and composed, which will also be a handy thing क्योंकि जैसे इन्होंने कहा 2C है, ऐसी 3 C's भी है. And she was Miss Nikita, thrice recommended, twice from Kolkata, once from Bhopal for SSC Tech. Thank you so much, Nikita, for giving all your answers at the best of detail because काफ़ी candidates ने I hope note down किया होगा their own areas of interest. So now let's seek doubts from the candidates. So guys, any queries, anything, please raise your hand and feel free to ask her. किसी को कुछ भी पूछना है because she was very busy and then है ना मतलब giving her valuable time. हाँ जी बताइए गोकुल. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, actually, I have a doubt about TAT. Okay. The most of the peoples I asked to my seniors, the story is up to you, not the best. The highlighted. I mean, how to say the best stories. Obviously, perception from you, ma'am. Oh, I'm not getting the question. You can just tell me in Hindi. मतलब मैं भी हिंदी में जवाब दे दूंगी, अच्छे से समझ जाएगा. Just ask me. Sorry, ma'am. I don't know Hindi. I'm from to South Tamil Nadu. Oh, all right. Then you want to ask me that what is the best story for a picture or something? Am I getting it right? Yeah, yes, ma'am. So what I believe that there's no best story. Like perceptions, nobody's perception is wrong. Only thing that matters is how much creativity you can put into a story. Like some person must be seeing that okay, there's a school function going on, and usko, he just looks that there are 2 or 3 activities are going on. Like someone is dancing or someone is singing a song, but the other person might perceive okay, he is the one who's organizing it, who is the one who's making list, he's the one who's making sure that all the technicalities are ensured. So you're getting it right. Someone is seeing just a simple view of ki haan ye cheeze like things are happening, but the other one is making sure that things are happening. He is himself responsible for those things. So this is how stories get better. Like no perception is wrong, only the creativity and the details that you can put into a story matters. So that comes with practice, and practice more, you will get your best story or your own version. Yes, ma'am. Thank you. Welcome. Okay, so there is a query from on chat. Guys, जिनको पूछना है I would request कि आप hand raise करके पूछो, that will be much better. ठीक है, पहले जिन्होंने hand raise किया, हाय रोशन, बताइए. या हाय मैम. हेलो मैम आपने कहा कि जीडी इज द फर्स्ट इम्प्रेशन. ओके, बट मैंने कहीं पे देखा या फिर मैंने भी एक में पार्टिसिपेट किया था जीडी में, तो वहां पे लोग वो फिश मार्केट बनाते हैं बहुत जोड़ का. हम उसमें अपना वैल्यूएबल पॉइंट कैसे पुट करें? जब मैं पॉइंट को पुट कर रहा हूँ, मुझे जो जीटीओ था वो देखा नहीं और बोला तूने तो कुछ बोला ही नहीं. उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? लाइक ये तो यार मतलब यू नीड टू फाइंड अ मोमेंट. एक मोमेंट आता है, हमेशा आता है. फिश मार्केट है ना, फिर एक मोमेंट आएगा, वो जितना भी बोल रहे हैं ना उनका एक फुल स्टॉप कहीं ना कहीं आएगा. यू नीड टू फाइंड, जैसे कि 5 लोग साथ में बोल रहे हैं, एक पॉइंट आएगा जहां सिर्फ 2 ही लोग साथ में बोल रहे होंगे, एंड यू नीड टू बी दैट पर्सन जो साइलेंस को ब्रेक कर दे तेज आवाज. लाइक ऑब्वियसली योर वॉइस मैटर्स एंड व्हाट यू आर स्पीकिंग इज रिलेवेंट. ऐसा नहीं कि क्योंकि फिश मार्केट ब्रेक करना था तो बोल दिया आपने. नो, योर पॉइंट शुड बी रेलेवेंट. ऐसा एक मोमेंट आएगा जब तुम्हें मिल रहा होगा स्पॉटलाइट, बट व्हाटएवर यू स्पीकिंग इज रबिश.
कुछ भी चल रहा है, तो दैट पीपल वोंट लिसन कि अरे इसका हमने 2 सेकेंड सुना, इसका कुछ आ ही नहीं रहा था वैल्यूएबल, तो फिर से फिश मार्केट स्टार्ट हो जाएगा. बट इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग वैल्यूएबल ना, दे लिसन. देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम दे लिसन टू यू बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एड पॉइंट्स. एंड ज्यादा ही फिश मार्केट हो रहा है ना, स्टे क्वाइट यार, चुप रहो वहां पे मत टाइम बोलो. कितना है? टाइम लिमिटेड जीडी के लिए होता होगा ना, कितना देर हाँ दे रहे हैं? हाँ हाँ, 20 कितना मिनट्स टाइम? आई गेस होता है कि 20 मिनट्स 15 मिनट्स एक टॉपिक को देते हैं वो लोग. एंड उसमें जस्ट ट्राई, अगर फिश मार्केट है ना, जस्ट ट्राई टू ऐड 3 or 4 points, मोर देन इनफ. पर अगर सब शांति से बैठने वाले लोग हैं, सुन रहे हैं ना, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव पॉइंट्स टिल द एंड ऑफ योर जीडी. कुछ लोग होता है कि स्टार्ट कर दिया, एंड आई व्हाट आई विल सजेस्ट इज नेवर स्टार्ट द जीडी, बी इन द मिडिल, take the conversation forward and always try and add new points. Do not repeat your points. अगर आपको मौका मिल रहा है ना, जैसे आप एक बार मोमेंट ऑफ साइलेंस आया, you put one point, but do not repeat it. उसके बाद फिर से आपको अगर सेम पॉइंट बोलोगे कोई नहीं सुनेगा. Add new points to the group discussion, so that would help. Like new points. राइट मैम, तो राइट मैम. एंड मैम आपने एक और मेंशन किया, कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव वर्ड आपने मेंशन किया, लेकिन ये हम तो कैसे बन सकते हैं कोऑपरेटिव? जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे कैसे शो करें? आपने बोला कि बीच में रहना है, किसी को जरूरत नहीं तो धक्का भी नहीं मारना है, तो कहाँ पे दिखाएंगे इस चीज को? कोऑपरेशन, कोऑपरेशन जीडी में बताऊं तो कोऑपरेशन तुम सुनकर बता सकते हो. एंड सुनना अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको लगता है फिर हम तो दिख ही नहीं रहे. पर सुनना इज अ बिग थिंग. जीडी में सुनो, वहां पे आप कोऑपरेट करोगे. लाइक समवन इज लुकिंग एट यू एंड स्पीकिंग समथिंग एंड यू आल्सो हैव अ पॉइंट टू ऐड, उससे अच्छा. पर उसको खत्म करने देना तू पहले, वो खत्म करेगा देन यू स्पीक. तो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन शो योर कोऑपरेशन इन. जीओआर में कोऑपरेशन मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल धक्का मत दो, ऑब्वियसली यू नीड टू शो, बट ऐसा नहीं कि वही धक्का देके तुम तो रह गए, फिर ऐसा नहीं करना है. बी इन द मिडल, गिव हैंड्स. These are things that people do and you need to do. I'm not telling you to not do. I'm telling कि overdo मत करो उसका, दिखावा नहीं करना. Just do wherever it is necessary. And most importantly, PGT में दिखा सकते हो आप कोऑपरेशन, क्योंकि people don't let others work. अगर उनका better idea है तो उनको आगे आ जाने दो. पीछे जाने में don't be hesitant कि नहीं मैं पीछे रहूंगा तो दिखूंगा नहीं. आगे पीछे होता रहेगा, it's all right. But डोंट बी एकदम बैक में, आगे पीछे होगा, लोगों को आगे आने दो, आइडियाज उनके अच्छे आ रहे हैं तो दैट वे यू कैन शो योर कोऑपरेटिवनेस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर गलत आइडिया लग गया है आपका, आपको पता है गलत, एक्सट्रीमली गलत, जस्ट एक्सेप्ट इट, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आ जाओ, उनको वर्क करने दो एंड अदर्स को आके आके उनको हेल्प करो. तुम आइडियाज मत दो, हेल्प करो, बस कोऑपरेटिवनेस दिख जाएगी. राइट मैम, थैंक यू मैम. एंड देयर इज नो स्टेज जहाँ पे आप कोऑपरेटिव नहीं होगे तो चल जाएगा. एवरी स्टेज रिक्वायर्स दैट. इवन इंटरव्यू ऑफिसर के साथ कोऑपरेटिव नहीं होगे तो डन फिर. तो वहां पे कैसे? लिसन टू हिम. आई वाज नॉट लिसनिंग टू आर्मी वाला, वो चिल्ला दिया मेरे पे कि अरे सुन तो ले मैं क्या बोल रहा हूँ. तो वहां पे पहले शांति से सुनो, व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली. उसने पूछ लिया कि लाइफ रूटीन में ऐसा क्या करते हो जिसमें एसएसबी में हेल्प हो रहा है सबसे ज्यादा, और तुमने बताना शुरू कर दिया पूरा का पूरा लाइफ रूटीन, तो दैट इज समथिंग नेगेटिव अबाउट यू, कि आपको समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है. तो दिस इज वन थिंग दैट मैटर्स. थैंक यू मैम. So next question, Mr. Tomar. Good evening. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम टेट के लिए पूछना था मैम, थोड़ा जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस कैसे डाल सकते हैं, थोड़ा सा एक्शंस नहीं आते हैं, मोस्टली फ्रेशर्स के साथ प्रॉब्लम रहती है मैम. एक्शंस मतलब मैं वही बोलूंगी कि पुट राइट डाउन अ थीम ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड सर्च आउट पॉसिबल एक्शंस. लोगों से पूछ लो, अपने दोस्तों से पूछो, एक ग्रुप बना होगा आपका एसएसबी का, तो उधर पे देख लो. देन आई मेंशन अबाउट रीडिंग अदर्स से स्टोरी जिनकी आपसे बेटर है. रीड दो स्टोरीज, उसमें से जो एक्शंस अच्छे लग रहे हैं या तो दिमाग में रख सकते हो तो रखो, वरना राइट इट डाउन कि ये मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये एक्शंस भी हो सकते हैं. बट some things are like be observant in your real life यार. if you're seeing something just be observant about it कि हाँ क्या चल रहा है. अगर मैं देख रहा हूँ कि something is going on in my locality, तो just be observant. ऐसे negligent नहीं रहना है कि यार चल रहा है तो चल रहा है. सब दूसरों से सीखो, आप अपनी लाइफ से सीखोगे.
आपने स्कूल में क्या किया है, मैंने देखा है कि एक स्कूल फंक्शन ऑर्गेनाइज कैसे होता है, मैंने उस पर स्टोरी बना दी क्योंकि मुझे याद है कैसे होता है. तो योर मेमोरी रिटेंशन पावर ऑल्सो मैटर्स यार, कि आपने एक बार स्टोरी प्रैक्टिस कर ली, फिर उसका और बेटर आप कैसे साइक टेस्ट में उस मोमेंट पे लिख पा रहे हो. आई विल सजेस्ट कि राइट इट डाउन, राइट थीम्स एंड देन राइट एक्शंस, कि कुछ भी हो जाए ये थीम आई तो मेरे को ये एक्शंस लिखने ही लिखने हैं. तो राइटिंग डाउन वुड हेल्प. या करेक्ट. बेसिकली देखो, एडिंग ऑन टू Okay. दिस यार, तोमर, देखो माइक्रो एक्शंस जो हम कहते हैं या एक्शंस जो भी निकिता ने भी कहा, सो यार देर आर सम सोर्सेज जो आप रेडिली यूज़ भी कर सकते हो, जैसे नोइंग अबाउट योर ओन सेल्फ, जैसे आपके आसपास जो हो रहा है, जैसा इन्होंने कहा स्कूल फंक्शंस वगैरह, तो आप देखते हो सब्जी मार्केट में जा रहे हो, यू आर फाइंडिंग कि कैसे बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खाने पीने को साफ सफाई रखते हैं, जो भी है. एंड देन यू कैन सी एक्टिविटीज़ हैपनिंग न्यूज़पेपर्स के थ्रू, कि कैसे फायर ब्रिगेड काम कर रहा है, कैसे फॉरेंसिक लेबोरेटरी वाले काम कर रहे हैं. सो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपके एक्शंस भी लेवल अप हो रहे हैं. ठीक है. एंड देर आर वेबसाइट्स लाइक बेटर इंडिया, देन यू हैव गॉट गुड. तो ये सब कुछ अच्छे वेबसाइट्स हैं. हीरो कुड बी IAS और अदर बिग ऑफिसर. यार देखो, इट डिपेंड्स अगेन, ऐसा नहीं कि सभी में ज़बरदस्ती आप IAS पुलिस ऑफिसर सब में बना रहे हो. अगर लग रहा है रिलेटेबल देन यू कैन, बट ऐसा कहा नहीं गया कि यू हैव टू मेक वेरी हाई लेवल तभी काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन मेक समवन हु इज अ स्कूल टीचर एंड डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स. ठीक है, क्योंकि इट शुड बी एज पर द लेवल ऑफ द पिक्चर. ठीक है, चलो. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाय निकी. Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. I want to ask a question. जैसे फिश मार्केट का अभी किसी ने पूछा था, तब फिश मार्केट फ्रेशर अटेम्प्ट में भी होती है? यार नहीं, मेरे टाइम तो बहुत क्यूट क्यूट से थे सारे. एवरीवन वाज लिसनिंग टू मी एंड आई वाज वेरी हैप्पी. ओ माय गॉड, लाइक दे आर गेटिंग मी रिकमेंडेड, दे आर लिसनिंग टू मी. तो आई वाज, तो फ्रेशर में मोस्टली नहीं होता है, जोक्स अपार्ट नहीं होता है फ्रेशर्स में, बट सम एंट्रीज इफ यू सी, लाइक आई जस्ट सॉ दिस मैसेज पॉप अप कि एनसीसी स्पेशल, उसमें सब तेज आते हैं, तो दे डोंट लेट एवरीवन स्पीक, बट I mostly gave tech entries, so वहाँ तो freshers were very normal. Even repeaters were very normal in Navy Tech this time. Nobody was cutting me, nobody was overpowering me. Everyone was listening to each other properly. Like there was a moment I spoke straight away for 3 minutes. Lecturate हो गया मेरा GD के बीच में. तो ऐसा भी हो जाता है. Matters है, depends कि अगर fresher तेज आ गए तो आगे. You should be ready for both of them, but mostly freshers are all cooperative, very cooperative, extra cooperative. Yeah. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Yes. Any other queries? Hi Arpan. Hi, sir. Hi, ma'am. Hi. Ma'am, I have a doubt regarding confidence, ma'am. Why do most of the candidates get confidence out in their first or any attempt? What are the reasons, ma'am, behind it? In my first attempt, what I'll say is underprepared. Mostly people do not know what's going to happen next. कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, जीरो होता है, क्योंकि साइक टेस्ट इतना कोई यूज तो नहीं होता इतना सारा लिखने को, इफ दे हैव नॉट प्रैक्टिस्ड. तो दैट इज वन थिंग कि अंडर प्रिपेयर्डनेस होता है फ्रेशर्स का. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिपीटर्स का आई वुड से कि इंट्रोस्पेक्शन इतने अच्छे से नहीं हो पाता. दे फोकस ऑन थिंग्स व्हिच आर नॉट इम्पोर्टेंट. आई विल टेल यू कि एग्जांपल है, लाइक पीपल फोकस ऑन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कि मैंने कम किए तो मेरा नहीं हुआ, फिर मैंने GTO में शायद GOR में आगे नहीं रही या पीछे नहीं रही तो नहीं हुआ करके. तो दीज आर थिंग्स दैट आर वेरी पेटी थिंग्स इफ यू लुक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समवन हु नोस कि क्या करना है. तो दे डू नॉट इंट्रोस्पेक्ट द थिंग्स लाइक इंटरव्यू. सबसे मेन उसको वो लोग इम्प्रूव करने का नहीं सोचते, और TATs जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है साइक में, उसको इम्प्रूव करने का नहीं सोच रहे होते. तो रिपीटर्स में व्हाट मैटर्स इज कि आप क्या गलत कर रहे हो, rather than कि क्या करना चाहिए तो रिपीटर्स को पता चल जाता है, पर वो क्या नहीं करना चाहिए वो फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं. So that's what I believe people go wrong, and yeah, that is one thing. Thank you, ma'am. Okay. Hi Yashasvi. Good evening, ma'am. I'm from ND Entry, and from the GDs that I have done so far, I have got a feedback, and I've also realized that my tone is a bit rude during GD. Although I don't mean to be rude, but my tone becomes in that way. So can you suggest some humble words so that I can be a little humble? Oh, humble words. मतलब humble words तो है नहीं as such. Like yeah, humble sentences are there. You can say कि I agree with you, ladies. Yeah, I agree with you. Chess number this.
but I would like to add a point. Even if you're disagreeing with someone, na, do not tell ki I don't agree with you. Never use negative words. Don't I don't want to, something like that. Just say ki I want to add a point. I have a point to add. Like these are the words that you can say before starting anything that you want to say. Just say कि okay, chess number 25, I agree with you, but I would like to add a point to it. या फिर आपने कुछ Okay, ma'am. contradictory भी बोलना है तो भी just say कि I want to add a point to your जो भी, और फिर contradict कर लो. Just say something or just completely opposite to the other person जो भी बोल रहा है. But just say by adding a point कि I want to add a point कि let me add a point. बस इतना ही बोलो अपने Oh. sentence बोलने से पहले. Ma'am, and also in GD, do we have to speak on only one specific lead that we have taken and take its stand, or if we have points for other two leads also, so we can speak on them at least one point, or if we are agreeing with the point first taken the other lead, so we can agree with them. Is it possible, or we have to take a staunch stand? No, I don't think you need to take a hard-on stance of one of the leads, because whenever I speak, मेरा एक main lead है. Okay, I agree to this point, but फिर मैं बाकी leads को भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं important है. Like if we say कि development of a country क्यों नहीं अच्छे से हो पा रहा है, is this corruption, is this something else, is this something else? I would say that my main point according to me is corruption with some stats. Then I'll also say कि ये चीज भी हो रही है, पर corruption सबसे ज्यादा है. समझ रहे हो? कम है वो चीजें, Yes, पर ma'am. करप्शन सबसे ज्यादा है. देन यू कैन टेल अबाउट अदर लीड्स आल्सो, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी मतलब व्हाट डाइवर्स ओपिनियंस यू कैन गिव ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो लीड हार्डली मैटर्स. ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड ऑन एक ही लीड फॉलो करनी है. गो मतलब ऐसा सब पे बोल सकते हो आप. इट्स ऑल ऑन यू. Yes, ma'am. And one last question. Like during interview, I'm from NDA background, so I don't have any technical knowledge about the field that I'm going in. So how can I face the question of why do you want to join Navy? Because I've got motivation from my parents, so I don't have any technical term that I can use in my interview. So do I have to read about it, or I'll have to search for something else? Like if you're from India attempt and you want to join Navy, then there should be a specific reason. Like if you're an army bred, you are an army bred, right? Yes, ma'am. So your father is an army. He was in Navy earlier. Then the question is solved. Your father was in Navy. You got motivation from him कि Navy में थे sir. अब मुझे भी Navy में ही जाना है. Continuing the legacy. That's it. It just solved. इतना ही आंसर है. उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, because your ND attempt ना. अगर मेरा भी Okay, attempt yes, होता ma'am. तो पापा नेवी में होते तो मुझे और कुछ बोलना ही नहीं पड़ता. मैं बोल देती पापा को इंस्पिरेशन मिला है बस. That's it. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Sure. देखो एक जीडी वाला जो क्वेश्चन आया था, वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस थिंग. बेसिकली देखो जो 3 लीड्स आते हैं आपके जीडी में, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर ओपन सेशन एज वेल. आयुष हैज आल्सो कवर्ड, आई हैव आल्सो कवर्ड इट. 3 leads are there. You will always find one lead as per your reasoning to be the base of the whole GD. जैसे मान लो इन्होंने कहा जैसे इकोनॉमिक, मान लो कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड आज़ादी का अमृतकाल. व्हाट वुड बी द पिलर, व्हाट वुड बी द पिलर ऑफ द डेवलपमेंट? कोई कहेगा मतलब 3 लीड्स में आएंगे डिफेंस, फिर ट्रेड, या फिर कोई कहेगा फॉरेन पॉलिसी. सो यू विल फाइंड आउट वन टू बी द बेस. सो उसको बेस बनाओ एंड बाकी 2 लीड्स को सबमर्ज करो उसके अंदर. जैसे मैं कह रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी के जैसे सब कुछ होने वाला है, तो I should be in such a way that because of foreign policy even military ties are happening, military exercises are happening. So उसके हिसाब से एग्जाम्पल दो, डेटा कोड्स, जो भी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करना है. सो इन दैट वे नो वन सेज कि स्टिक टू वन लीड, बाकी में कुछ मत बोलो. अगर आप वैसे करते हो तो क्या होता है, बाकी 2 लीड्स में अगर आप बिल्कुल नहीं मुंह खोल रहे, दैट शोज यू हार्डली नो एनीथिंग अबाउट अदर 2 लीड्स. ठीक है, दैट इज अ वेरी लाइक इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड दैट विल ओनली गो अगेंस्ट यू. सो आप बाकी में भी बोलो बट मेन लीड पे कॉन्वर्स करके हो जो आपका स्टैंड था, है ना. दैट विल बी मच मोर, दैट विल हेल्प यू टू बी अ मच मोर लर्नड पर्सन इन योर होल जीडी. ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लैरिफाइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. सर व्हाट शुड आई डू इफ आई वी गेट लेक्चर टॉपिक? हाँ तोमर जी पूछिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए. सर जैसे कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता है, रेयरली होता है ऐसा कि लेक्चर टॉपिक कोई ऐसा आ गया इसके बारे में अवेयर नहीं है, नॉलेज नहीं है उसके बारे में, सडनली बोलना एक प्रेशर होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए उस टॉपिक के लिए?
should I answer? Or यस answer? गो अहेड, पहले आप ये पूछो उसके बाद। तो हाँ तो जैसे यू सेड रेयरली हैपेंस कि आपको नहीं पता हो पोल्यूशन के बारे में या फिर कुछ भी हो उसके बारे में, 4 में से 1 के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए गिवन दैट यू आर एन एसएसबी कैंडिडेट। पर फिर भी अगर वंस इन अ ब्लू मून आपकी किस्मत इतनी खराब है कि ऐसा कुछ आ गया, देन जस्ट relate that topic with something that you know, like there was this topic, India's something situation, geopolitical situation। अब उसमें इतना ज्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है कि क्या ही बोलूं मैं उस पे, लाइक देयर कांट बी अ स्ट्रक्चर। सो व्हाट आई डिड वाज मैंने इंडिया का पार्टिसिपेशन बता दिया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग्स में, लाइक G20 सार्क ये सब में मैंने बता दिया। तो दैट वाज लाइक आई कन्वर्स द टॉपिक टू समथिंग दैट आई न्यू, दैट देयर वाज दिस टॉपिक कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। आप न्यूक्लियर एनर्जी का डेफिनेशन बताओगे, फिर अब मैंने क्या किया, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता ही नहीं था इंडिया में क्या चल रहा है, तो व्हाट आई डिड वाज न्यूक्लियर एनर्जी को पोल्यूशन से मैंने रिलेट कर दिया। देन आई टॉक्ड अबाउट कि हाउ न्यूक्लियर एनर्जी इज टैकलिंग पोल्यूशन, देन आई टॉक्ड अबाउट पोल्यूशन से क्या हो रहा है, और फिर मैं न्यूक्लियर एनर्जी से एंड कर रही हूँ। एंडिंग मैंने न्यूक्लियर एनर्जी से करी, पर बीच का जो कंटेंट है दैट वाज समथिंग आई रिलेटेड टू समथिंग दैट आई नो ऑफ, दैट समथिंग आई कैन स्पीक ऑन टू। तो दैट इज दैट इज विटी, दैट इज क्लेवर ऑफ यू कि आप रिलेट कर पा रहे हो टॉपिक्स। यू आर रिलेटिंग पोल्यूशन विद समथिंग एल्स, यू आर रिलेटिंग G20 विद इंडिया फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आप प्रिपेयर करके जाते हो, देयर आर सम टॉपिक्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड उससे रिलेटेड अगर आसपास का भी कुछ आ जाता है ना, जैसे G20 आ गया, तो आप इंडिया में जो अभी हुआ था इतना न्यूज में था वही बता दो। जरूरी थोड़ी है G20 क्या है वही बताना है, लाइक कुछ चीजें प्रिपेयर करके जाओ, डेफिनेटली टॉपिक्स उसके आसपास से आएगा एंड जस्ट रिलेट टू समथिंग दैट यू नो ऑफ। दैट्स इट, दैट्स द ट्रिक फॉर लेक्चरेट। या एंड ऑल्सो एडिंग ऑन टू दिस ईयर लेक्चरेट में हमने कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में बताया था, दैट वाज परफेक्टली कवर्ड ऑन एन ओपन सेशन, यू कैन चेक इट आउट, प्रॉपर डीप डिस्कशन है। सेकेंडली देखो, जैसे इन्होंने कहा लेक्चरेट में यू हैव टू अंडरस्टैंड, लोग ऐसे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में डिवाइड करते हैं, है ना, कोई भी टॉपिक को, ठीक है, वो एकदम बेसिक नॉर्म है, बट इफ़ यू कैन नो सम फ्रेमवर्क्स, जैसे हमने 3 फ्रेमवर्क्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें 4 C's करके, स्पेशल करके, और एक, हाँ हमने 2 ही किया था उसमें, हम बाकी ओपन लाइक GTO क्लासेस में जो हमारे पेड प्रोग्राम्स होते हैं उसमें और डीप में जाते हैं, ठीक है। तो यू कैन वर्क ऑन फ्रेमवर्क्स एज वेल, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। Okay, there is a question, ma'am, it is said that one should not speak too much truth in their interview, then how to, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ जी मैडम निकिता जी बताइए। So question says, ma'am, it is said that one should not speak too much truth in their interview, then how to do we answer those questions? Basically सच्चाई ज्यादा नहीं बोलनी, तो आपने कैसे हैंडल किया? हाँ तो मतलब सच्चाई ज्यादा नहीं बोलनी, तो दैट इज योर क्लेवरनेस, इवेंचुअली एवरीथिंग गेट्स बैक टू क्लेवरनेस ओनली। कितना बता रहे हो अपने बारे में, बता दिया कि स्कूल में देयर वाज दिस मोमेंट में ही तो फट गई थी, पूरा पूरा ही बता दिया तो बस देन यू आर गॉन, देन होल योर ऑरा इज गॉन। तो जितना कम बोलो, कम तो नहीं मतलब लिमिटेड बोलो, जितना उसने पूछ लिया व्हाट इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, बताओ मुझे। तो ऐसा कुछ मत बता देना दैट यू नो कॉम्प्रोमाइजेस योर OLQ कि ये तो डील ही नहीं कर पाए सिचुएशन। माय बिगेस्ट रिग्रेट व्हाट आई टोल्ड, मेरे से दोनों इंटरव्यू में पूछा था कि क्या है रिग्रेट, तो व्हाट आई टोल्ड वाज कि सर आई शुड हैव पार्टिसिपेटेड मोर इन स्पोर्ट्स, व्हाट आई फील, बिकॉज आई वाज अ नर्ड एंड माय परसेंटेज जस्टिफाइड इट कि आई वाज अ नर्ड। देन माय पार्टिसिपेशन इन दैट स्पोर्ट्स कॉलम जस्टिफाइड इट कि हाँ इसको ज्यादा करना चाहिए था। तो दिस इज अ क्लेवरनेस दैट कम्स, जो आप प्रिपेयर करोगे उसके साथ कि क्या बोल सकता हूँ मैं बिगेस्ट रिग्रेट में। तो डोंट यू नो कॉम्प्रोमाइज योर OLQs व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग सच थिंग्स, बिकॉज वो आपके अगेंस्ट ही वर्क करेगा। करेक्ट, गुड। बेसिकली देयर इज अ मिडिल पाथ फॉर ऑल योर आंसर्स, आपको वही ढूंढना है ना, कहाँ देख बोलते हैं ना, एक सच होता है और एक झूठ होता है, और उसके बीच में होती है मिडिल पाथ, यू हैव टू फॉलो इट, ठीक है। एंड दैट्स वेयर द इंटरव्यू लाइज एंड दैट विल डेफिनेटली सेल यू थ्रू, क्योंकि एज एन ऑफिसर ऑल्सो कल को जब इवन एकेडमी में जाओगे आपको यही सभी करना है, इवन सर्विस में भी, यहाँ काफ़ी सारे सर्विस पर्सनल्स भी हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा कि आगे फौज में क्या चल रहा है, उन्हें खुद पता है ना। अच्छा है कि बाहर वालों को ना बताया जा भी, वरना फिर वो सोचते रह जाएंगे अरे ये क्या हो रहा है ना। सही कह रहा हूँ मैं, जो सर्विस वाले, मुझे पता है, देखो मीटिंग में कुछ हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए
ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस. हाय मुस्कान, गुड इवनिंग. Hello, sir. Good evening. Hi, ma'am. Ma'am, actually, I am also going for Navy Tech entry to Kolkata. So I wanted to ask you that for interview, am I supposed to have a hardcore knowledge of Army and Air Force as well? हार्डकोर आई वोंट से, बेसिक नॉलेज. एंड एयरफोर्स तो मतलब मुझसे 3 बार कोलकाता गई हूँ मैं, तीनों बार एयरफोर्स का वहाँ जिक्र भी नहीं किया था उन्होंने. तो आई डोंट थिंक, अगर until and unless you have given AFCAT and given some AFSB, then you should know, क्योंकि तुमने ऑलरेडी किया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में है तो ही आस्क्ड मी सम आर्मी रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्वियसली. अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली नेवी ही आस्क्ड. Okay, thank you, ma'am. Okay, so no other queries guys? Yeah, that's it. क्योंकि काफ़ी लोग के काफ़ी सारे क्वेरीज रहते हैं, है ना. दे इधर स्पैम द होल मैसेज बॉक्स या फिर व्हाट नॉट. तो पूछ सकते हो यहाँ पे, फील फ्री टू आस्क. हाँ जी शिखर, बताइए. जैन मैम, जैन सर. सर एक्चुअली आई हैव डाउट, लाइक डे वन जो ट्रेनिंग है उसके लिए मतलब क्या इम्पोर्टेंट है. कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा नरेशन भी अच्छा गया, मेरी पीपीडीटी भी अच्छी गई और जीडी भी अच्छा था, लेकिन मैं फिर भी आउट हो गया. तो मतलब वो समझ नहीं आता एज आई एम ए फ्रेशर. अच्छा, स्क्रीन इन का पूछ रहे हैं, राइट? नॉट लिसन. यस मैम. तो स्क्रीन इन तो इट्स अबाउट योर डे ऑल्सो. कई बार आपका दिन ही नहीं होता. मेरा भी दिन नहीं था बैंगलोर में. आई गॉट स्क्रीन आउट. मतलब मैंने सब किया, बट माई मिस्टेक वॉज व्हाट आई बिलीव. आई रोट द स्टोरी बॉक्स. देयर इज अ स्टोरी बॉक्स, राइट? यू नीड टू मार्क कैरेक्टर्स ऑन इट. मैंने उसमें क्या किया था, इंस्टेड ऑफ मार्किंग 1 मेन कैरेक्टर आई मार्क 3 मेन कैरेक्टर्स. आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं फ्लो में हो गया. तो व्हाट आई बिलीव द रीजन ऑफ मी गेटिंग स्क्रीन आउट वाज दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी स्टोरी अच्छी थी, रिलेवेंट थी, माय जीडी पार्टिसिपेशन वाज आल्सो गुड. तो आई व्हाट आई बिलीव, लाइक फ्रॉम माय अदर अटेम्प्ट्स, आई थिंक योर रेलेवेंस टू द पिक्चर अगर दिख रही है कि स्कूल फंक्शन है नॉर्मल सा, कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा है, देन राइट नॉर्मल. यू डोंट नीड टू मेक दैट पर्सन whom are you perceiving as a hero ना, उसको ऑफिसर बनाने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग फॉर सम ऑफिसर एंट्री. नॉर्मल बंदे को नॉर्मली बनाओ. अगर दिख रहा है एक लड़की साड़ी में है, देन उसको कुछ नॉर्मल ही बनाओ. ऐसा नहीं कि ऑफिसर ही बनाना है. लाइक साड़ी तो ऑफिसर भी पहनते. मैं बता रही हूँ कि नॉर्मल दिख रहा है तो नॉर्मल बनाओ. कुछ हाई फाई माउंटेनियरिंग समथिंग दिख गया तो वही बनाओ. एंड इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग ब्लरी ना, तो यार जो तुमको बेस्ट स्टोरी याद आ रही है वो बना दो. एंड व्हेन यू आर लिसनिंग टू अदर स्टोरीज ना, फाइंड अ कॉमन पॉइंट. और अगर कुछ कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, जस्ट गो विथ द मेजॉरिटी. अपनी स्टोरी छोड़ दो, त्याग दो अपनी स्टोरी, जस्ट गो विथ मेजॉरिटी ऐसे मोमेंट पे जहां तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट बन गई है. ठीक है, जस्ट ऐड थोड़ा सा पॉइंट कि मेरी स्टोरी का ऐसा ऐसा है, तो बाकियों की स्टोरी के साथ चले जाओ अगर वो ज्यादा रिलेवेंट है. तो दैट शोज योर कोऑपरेशन एंड योर माइंडफुलनेस कि हाँ चलो, I am prioritizing the group solution rather than sticking on my own. So that is one point. Okay. Relevance of your story matters. कि relevant features है. थैंक यू. ओके, बेसिकली इसमें अगर कुछ और ऐड करें तो द स्टिमुलस ऑफ द पिक्चर, कि जो पिक्चर में हो रहा है आपने उसी के आसपास घुमाया है rather than somewhere else beating the bush. ठीक है, अगर पिक्चर बहुत हेजी है तो जो भी हो रहा है, जो भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लग रहा है उसके आसपास बनाओ, बिकॉज तब सारी यूनिक स्टोरीज निकल के आएंगी. ठीक है, ओके. एंड अगेन एक बहुत अच्छी पॉइंट निकिता ने बताई कि इट इज़ ऑल्सो द डे विच काउंट्स, क्योंकि मैनी कैंडिडेट्स आर देयर, है ना. हमारे इवन मैं खुद भी बहुत बार स्क्रीन आउट हुआ. आई हैव सीन बैक टू बैक स्क्रीन आउट्स 5 times कॉन्सिक्यूटिवली. सो इट इज़ द डे एज वेल एज हमने सब कुछ अच्छा किया होता है, कभी सही नहीं होता है. अगर मैं उस दिन को लेके बैठ जाता तो आई वुड हैव नॉट मेड इट बैक टू बैक, एंड इवन नॉट निकिता, है ना. तो ऐसे ही है, आपको गिव अप नहीं करना है एक चीज़ में. ओके, सो विल टेक सम मोर क्वेश्चंस. हाय मुस्कान. हाय मैम, एक्चुअली जो आपने बोला टैट में जैसे वुमेन सेंट्रिक पिक्चर्स आती है मोस्टली, सो बीपीडीटी में भी ऐसा कुछ होता है क्या, दैट वुमेन सेंट्रिक पिक्चर्स आती है या फिर नॉर्मल पिक्चर्स आती हैं? Depends यार. मतलब I have been to how many boards? Just 2 boards because 3 to attempts were in Kolkata only. तो उसमें से 1-2 बार ही होगा कि women दिख रही है बस मुझे. बाकी तो at times they give you men also, and that depends यार. Like some people what they do is, even if they're
seeing a men no, तो just because they have been coached or something they write कि women ही दिख रहा है मुझे तो, and that's something I don't believe is right. जो दिख रहा है वो बनाओ. Obviously you should, being a woman you should make women a hero of the story, but even if you have made a man no, so it's not a problem. जब तक आप confident हो कि मैंने सही स्टोरी बनाई है, टू द पिक्चर बनाई है मैंने स्टोरी, तो इट्स नॉट कि सिर्फ वुमेन आएगा. पीपीटीटी का स्पेसिफिकली कुछ भी आ सकता है. लाइक इट्स अ ग्रुप में आपको लड़की दिख रही है तो आप वो सही है. अगर सिंगल लड़की है तो फिर वो ठीक है. एक बार सिंगल मैन ही आ गया था तो उसको लड़का थोड़ी, मतलब लड़की थोड़ी बना दोगे. बट सम पीपल मेड इट, गॉट स्क्रीन्ड इन, तो कुछ भी होता है. पीपीटीटी यू कांट से एनीथिंग. देखो and all यस, Yeah. जैसे इन्होंने कहा ना कि जनरली ये मेल्स के साथ भी होता है. मेल्स कहते हैं कि सर हमें तो मेल को ही करना है, हम कैसे फीमेल को कर सकते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द क्वालिटीज मैटर. आप किसी से कुछ भी कराओ, ऑफिसर इज एन ऑफिसर, ठीक है. लड़का हो लड़की हो, काम जैसे करवाओगे, माइक्रो एक्शंस विल डिस्टिंग्विश, है ना. कोई अगर लड़के से वही काम नहीं करवा पा रहा जो लड़की से करवाना है, या लड़की से नहीं करना, द थिंग इज इट्स ऑल अबाउट योर साइक, कि आप वहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है. आई विल एडमिट कि मैंने एक अपने टीएटी की स्टोरी में जहाँ मेल और फीमेल दिख रहे थे, फीमेल वॉज इन अ मोर डोमिनेंट रोल, कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है, तो आई मेड अ फीमेल कैरेक्टर एंड आई मेड इट. तो इट वॉज इन टीएटी, ठीक है. तो जनरली फॉर मेल्स एज वेल एंड फॉर फीमेल्स निकिता ने ऑलरेडी अच्छे से बता ही दिया, ठीक है. हाँ जी. And so one more thing, that if मुझे सिर्फ लड़का ही दिख रहा है, so am I supposed to bring a woman from outside or am I supposed to make the man as my hero? Avoid bringing outside characters as much as possible. जब तक एकदम लगे ना नहीं उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, तब तक आउटसाइड कैरेक्टर्स मत लाओ. दैट शोज योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी कि भैया अंदर से नहीं बन पा रहा है इनसे. समझ रहे हो? डोंट डू इट. एकदम वेरी मतलब आई वुड से 100,000% एग्रीड, बिकॉज दैट ऑल्सो शोज दैट कि अगर आप, यू हैव टू अंडरस्टैंड एसएसबी इज ऑल अबाउट वॉर, ठीक है. वॉर में रिसोर्सेज की कमी है, मैन और मटेरियल की कमी है. आपको बाहर से हर चीज़ अगर चाहिए, लोग बोलते हैं हमने अपने पिक्चर में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस सब कुछ यूज़ कर लिया. यार आप कैसे एसेट बनोगे जब आपके पास ही वो सब चीज़ें होनी चाहिए. जैसे आप वाई एम्बुलेंस, आप फर्स्ट एड खुद भी दे सकते हो, ठीक है. आप खुद ही ड्रेसिंग वगैरह भी करवा सकते हो. मतलब लोग कहेंगे मैंने ज़िंदगी में कभी किया नहीं है, तो इसलिए तो कह रहे हैं आप पढ़ो, देखो आसपास जो हो रहा है ना. आप देखते रहते हो कि हाँ यहाँ कुछ कुछ किसी कंट्री में फर्स्ट एड दे रहे हैं, मतलब कुछ किसी कंट्री में रिलीफ मेजर जा रहा है, तो क्या क्या दे रहे हैं. So those all are micro actions, and that is where the real game comes in picture. ठीक है. And ma'am, one more thing, that sometimes I have seen that pictures are way too blurry that identify नहीं हो पाता है. So ऐसी pictures भी आती हैं क्या कि जो बहुत ज़्यादा blurry होती हैं? आती हैं यार, डेफिनेटली आती हैं, पर कुछ तो दिख ही जाता है, कुछ तो हमेशा दिख जाता है. लाइक इफ देयर समथिंग वेरी ब्लरी नो, जस्ट स्ट्रेट अवे स्टेयर फॉर इट 30 सेकेंड्स. मतलब बिना अपनी आईज को ब्लिंक करे आप बस उसको देखो ना, तो कुछ तो आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा. एंड आपको ही नहीं दिखेगा, वो सबको दिख रहा होगा जिसको स्क्रीन इन होना है. तो क्या पता आप दोनों कॉमन स्टोरी बना दो, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर सेम दिखा कि ये इस शेप में है, तो इस शेप में तो माउंटेन्स होते हैं. तो दिस इज समथिंग कि आप घूर लो उस पिक्चर को पूरा 30 सेकेंड. ये मत सोचो क्या बनाऊं, जस्ट आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन और समथिंग रेलेवेंट कि इसके अराउंड में स्टोरी बना सकती हूँ. तो ब्लरी पिक्चर से डरना मत, वो आ जाता है समझ वहाँ पे. Okay ma'am, thank you so much. Okay. Hi Rahul. Good evening यार. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. क्या हाल चाल? सही है सर. सही है. So आपकी कुछ क्वेरी थे शायद, हैंड रेज किया आपने. यस सर. सर अभी आउटसाइड कैरेक्टर पे ही पहला तो क्वेरी है कि मेन कैरेक्टर जो बाहर से लाने का है. अगर पिक्चर में एक ही बंदा है और हमें विक्टिम जैसा लग रहा है, मतलब कोई रो रहा है या फिर उसको चोट लगी या हाथ पैर टूटे, मतलब ऐसे पिक्चर आती है, तो वहां पे उस समय तो हम विक्टिम नहीं बना सकते मेन कैरेक्टर को. मीन्स अगर वो रो रहा है ऐसा करते तो उस समय बाहर से लाए, या फिर वही कि उसने आगे किया काम अपने ऊपर और ठीक किया, ही फाइट अगेंस्ट द सिचुएशन और जीता था. व्हाट वुड बी द बेस्ट? निकिता कुछ कहना चाहोगे उसके बाद? सेकंड ऑप्शन जो आपने सेकंड बोला ना, गो फॉर दैट ऑलवेज. उसने खुद किया, खुद कर लिया, सब कुछ खुद ही करेगा. हीरो है ना, खुद ही कर लेगा बस. वेरी गुड क्वेश्चन इज कमिंग ऑन इन चैट. ठीक है, देखो टू बी ऑनेस्ट आई नेवर रिवील दैट आई जॉइंड एकेडमी एट आईएनएस चिल्का और एट नेवल एकेडमी, दो आई शुड मेंशन इट वेरी एप्टली प्रॉपरली कि हाँ जो एकेडमी कैडेट्स हैं बताइए, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज. डिप्लोमेसी वर्क्स इन सच अ वे
दैट आपको कहाँ चीज़ें कहाँ नहीं बतानी है ना. देखो आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो आप लोग यार नहीं जानोगे तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम, है ना. यू शुड नो मी वेरी, है ना, प्लेन क्लियर. वहाँ पे प्लेन क्लियर की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे जो सुनना चाहते वो सुनाओ, जो देखना चाहते वो दिखाओ, रादर देन कि नहीं मैं तो मेरी तो यही सच्चाई है ना. सच्चाई में तो यार आई जॉइंड एज अ सेलर, है ना, लॉन्ग बैक इन 2019, ठीक है, एज अप्रेंटिस आर्टिफिशियल. देन आई लेफ्ट, देन आई जॉइंड एट नेवल एकेडमी. तो ये सब बताने सच्चाई है, ठीक है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बोलते ना मिडिल पाथ. ये कह रहा हूँ कि हाँ कुछ इश्यूज थे, देन आई लेफ्ट. इससे सीधा बताऊँ कि हाँ अभी भी काम चल रहा है, ठीक हो गया हूँ मैं, विल जॉइन, ठीक है. सो आई नेवर टोल्ड एंड ही नेवर आस्क्ड, दो देयर वाज नेवर अ क्वेश्चन कि आपने क्यों नहीं ट्राई किया, ठीक है. सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन अंकित. हाँ जी, एनीवन एल्स कुछ और पूछना है? या सर, द सेकंड द अबाउट द मेन कैरेक्टर ओनली, कि जब मेन कैरेक्टर से अगर ज्यादा काम कराना है, इफ इज ऑन द सम पोजीशन, ठीक है, अगर सोशल टॉपिक पे बनाना है, देन ही हैव मोर रिसोर्सेस कि वो काम कर सकता है ना. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीजों को ठीकना. तो उस समय हम उसको एसडीएम या फिर ऐसे कुछ पद पे डाल सकते हैं. हाँ ज्यादा बेटर रहेगा या फिर कॉमन? नो लाइक व्हाट आई बिलीव कि पोजीशन पे डालना इज ऑल राइट. अगर दिख रहा है सूट बूट पहन के तो वो कर्मचारी नहीं हो सकता, राइट. तो वही है जो दिख रहा है. अगर दिख रहा है कि ही सम ऑफिसर, आपको लग रहा है आपने उसको ऑफिसर बना दिया, तो ऑफिसर खुद थोड़ी सब करेगा ग्राउंड पे जाके, राइट. इवन डेलीगेटिंग टास्क इज अ OLQ. आप खुद नहीं कर सकते सब. आप ऑर्गेनाइज खुद नहीं कर सकते. यू नीड टू मेक टीम्स, यू नीड टू एंश्योर, यू नीड टू मेक श्योर कि ये ऐसे, आप उसको ऑर्डर्स तो आप दे रहे हो ना कि ऐसे ऐसी चीजें होनी चाहिए, मुझे ये सब चाहिए. तो दैट ऑल्सो शोज योर क्रिएटिविटी कि आप क्या क्या मेक श्योर कर रहे हो एक फंक्शन के अंदर, या क्या क्या मेक श्योर कर रहे हो. अगर आपने सपोज इलेक्शन ऑफिसर बना दिया, तो क्या क्या मेक श्योर करोगे कि ये चीजें हर बूथ पे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, कितनी कितनी रिसोर्स लग जाएगी एक बूथ पे. तो ये सब चीजें ऑफिसर के अंदर आती है. ऑफिसर खुद नहीं कर रहा, पर करवाना भी इज अ टास्क ना. तो करवाने में भी यू नीड क्रिएटिविटी की क्या क्या मैंने करवाया. समझ रहे हो? यस मैम. जस्ट लास्ट टू मोर क्वेश्चंस. हाँ. The third question is about the low level idea and the high level ideas. मीन मतलब टैट में तो मेरे ख्याल से एक्शन पे ज्यादा होता है, बट स्क्रीनिंग के टाइम पे मैंने देखा है कि उनको अलग करने होते हैं बंदों को. तो जो जिन बंदों की नॉर्मल स्टोरी रहती है, जैसे कि ट्रिप पे जा रहे हैं या कुछ ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो उनके मतलब उनका स्क्रीनिंग ऐसा होता है कि कम होता है, या फिर जिनका जो हाई लेवल रहता है कुछ अलग ही सोशल टॉपिक लेके कर रहे हैं, और तो उनके स्क्रीनिंग के चांसेस ज्यादा होता है. ऐसा कुछ होता है? नहीं यार, मतलब अगर स्क्रीनिंग का पूछ रहे हो तो एकदम सिंपल स्टोरी भी स्क्रीनिंग होते देखी है मैंने मेरे साथ, और एकदम कॉम्प्लेक्स स्टोरी को आउट होते देखा है, क्योंकि वो फालतू के एक्शंस डाल रहा है. अगर जरूरत ही नहीं है उन एक्शंस की, तो इट्स नॉट बहुत ही ज्यादा मेजर कुछ ऐसे टची इशू उठा लिया उसने कुछ भी, और वो कहीं तक दिख ही नहीं रहा है पूरा स्टोरी में, तो दैट इज इररिलेवेंट. क्यों आपने मतलब ऐसे किया? मिडिल पाथ यार इसमें भी. डू नॉट गो एकदम लो कि हाँ मैं पिकनिक पे गया एंजॉय करके आ गया, दैट इज वेरी लो. एंड डोंट गो एकदम एक्सट्रीम कि मैं तो धरने पे बैठ के पूरा लॉ चेंज करवा दिया, तो दैट इज समथिंग एक्सट्रीम. गो मिडिल की हाँ ये इशू मुझे दिख रहा था, एंड उस स्टोरी में भी दिख रहा है, पिक्चर में भी दिख रहा है, और इसको मैंने कैसे अपने लेवल पे सॉल्व कर लिया, और कैसे कितने लोग अफेक्ट हो गए इससे, कितने लोगों का भला हुआ, एंड मुझे इससे बहुत अच्छा लगा. बस इतना ही. Don't go extreme. And the last question about the PIQ form. The PIQ form, if it looks like empty, means you have done something. Can we add some extra points like achievements and prepare for it? Of what course. do you think about it? I think that's the best idea. I mean, like, do not overdo it. Do not overwrite, like overdo things that you have not done. Like 1 or 2 things you can add extra, जिसके बारे में आप सच में पढ़ सकते हो. Like मैंने अपनी लिटरली पूरे स्कूल और कॉलेज लाइफ में स्पोर्ट्स में मेरा कुछ नहीं था, बट आई हैड टू राइट समथिंग, तो आई रोट डाउन 2 things, just 2 things, बिकॉज थोड़ा सा आई हैव डन इन दैट, नो लेवल्स, बस पार्टिसिपेटेड. और मैंने उसके बारे में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लिया, जितना जो खेलता है उसको भी नहीं पता होगा. तो ऐसा करो, ऐसा मतलब आप लिख रहे हो ना, तो उसके बारे में पढ़ भी लो. एंड डो नॉट ओवरराइट इतना ज्यादा कि आपको पता ही ना हो. जो कर लिया है वो लिख रहे हो तो दैट्स ऑल गुड, क्योंकि आप दे पाओगे ना आंसर. पर जो गलत लिख रहे हो ना, जो फेक लिख रहे हो, उसको कम से कम रखना, तो वो दैट वुड बी बेटर फॉर यू. ओके मैम, थैंक यू.
हाँ जी, we will take up some more doubts, things and words to avoid in psychology. हाँ जी, is there anything? वैसे देखो यार, आप पहले निकी, आप ही आंसर करो इसको. मतलब थिंग्स टू अवॉइड, लाइक अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स. नेगेटिव मतलब नेगेटिव, यार नेगेटिव वर्ड्स समझ आ जाते हैं पढ़ के कि नेगेटिव हैं, तो वो मत ही लिखो. क्यों लिखना है कि भाई मुझे इतनी नेगेटिव चीजें भी पता है सोसाइटी की. डोंट राइट, इट्स आवर सोसाइटी, वी लिव इन दैट. वहां पे कुछ वो मोर्चा करने तो जा नहीं रहे. बी नॉर्मल, बी एवरेज कि हाँ ये सोसाइटी करप्शन इज गोइंग ऑन, और करप्शन से और क्या गंदी गंदी चीजें हो रही है. डोंट नीड टू राइट अबाउट इट कि मैंने वो भी टैकल कर ली, हीरो ने वो भी टैकल कर ली. डोंट गो एक्सट्रीम लेवल्स पे कि कुछ ज्यादा ही, मतलब आई एम नॉट नेमिंग थिंग्स बट यू नो कि क्या लिखना होता है. तो मत जाओ उस लेवल पे, तो जाना ही नहीं है. बीच में कहीं पे रहो कि ऐसे माइनर से मोर देन माइनर सोशल इशू, मेजर सोशल इशू तो उठाना ही नहीं है. मतलब आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर दैट. दैट इज नेगेटिव चीजों को अवॉइड कर. नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं पढ़ के कि नेगेटिव है, तब यू ऑल आर ग्रोन अप्स. मैं नेम थोड़ी करूंगी नेगेटिव वर्ड्स, राइट? करेक्ट. जैसे देखो सम वर्ड्स सिंपल है यार. ट्राई जैसा वर्ड मत यूज करो. ट्राई शोज दैट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लो. ठीक है. कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, है ना. नो सजेस्टिव थिंग्स कि हाँ ये भी हो जाएगा, वो भी करवा देंगे, ये भी करवा देंगे. शो सम एक्शंस जो ऑन ग्राउंड हो रहा है, इन स्टोरी, इन SRTs, इन WATs. लास्टली नेगेटिव वर्ड्स जैसे निकिता ने बताया कि अननेसेसरी ये मत बताओ ही वॉज वेरी, ही वॉज, है ना, फ्राइटेंड, डर गया या रो रहा था या ऐसा. वो सब नहीं करना है भाई. अब आपको कहाँ दिख रहा है रो रहा है? काफ़ी लोग ऐसे रोना धोना करते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी करते हैं हमारे कल के. तो वो नहीं करना. नेचुरल सेल्फ देखो. आप लोग को लगता है इतना रियलिस्टिक दिखा देंगे कि एकदम बारिश, मतलब एकदम से रोना धोना ही चल रहा है. ठीक है, वो नहीं करवाना आपको. ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंगल. ठीक है, चलो हम थोड़े और क्वेश्चन लेते हैं. हाँ जी, मुस्कान जी. और गाइस जिसको भी पूछना है प्लीज रेज देयर हैंड एंड प्लीज आस्क देयर क्वेश्चन. Ma'am, it is said that the mood of the hero is supposed to be positive always. So even एक accident हो रहा है सामने, तो फिर भी am I supposed to write the mood as positive? And मतलब at any situation am I supposed to mention the mood as positive? Yes, मुस्कान, definitely positive. अगर देखो, it's not like कि जो पिक्चर में दिख रहा है वो तो आप लिख ही रहे हो, but that is not what decides कि positive हो आप. The outcome of your story, एक्सीडेंट दिख रहा है पर तुम निकल आए ना उस एक्सीडेंट से, सबको बचा लिया ना जो आसपास थे, तो दैट इवेंचुअली कम्स डाउन टू पॉजिटिव, राइट? कि माइंड जो इंजरीज थी वो मेजर में कन्वर्ट नहीं हो पाई, किसी की जान नहीं गई, तो दैट एंड्स अप ऑन अ पॉजिटिव नोट, दैट मेक्स योर स्टोरी पॉजिटिव. दिखा नेगेटिव, शुरू नेगेटिव से किया बिकॉज दैट वाज रिलेवेंट टू द पिक्चर, बट एंड गेम जो है वो पॉजिटिव ही है. बीच में जो हो रहा है, आप जो फर्स्ट एड दे रहे हो वो पॉजिटिव ही है. सो या दैट्स इट. देखो जनरली जब आपको 3 मूड्स दिए जाते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, सो आई वुड बी, देखो याद रखना नेगेटिव जैसा कुछ है ही नहीं. नेगेटिव का मतलब क्या है? द टेम्परामेंट माइट बी नेगेटिव, बट पॉजिटिव का मतलब जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ है या कोई डूब रहा है, सो यार यू आर एट जोश, जील, यू आर डाइविंग, यू आर हेल्पिंग, सो दैट इज पॉजिटिव इन नेचर. आप खुद बताओ, कोई अगर दुख दर्द की कहानी बता रहा है, आप सब लोग भी अगर रोने बैठ जाओ तो वो नेगेटिव हो रहा है, बट कोई आके बोल रहा है नहीं सब सही हो जाएगा, बढ़िया होगा, तो वो पॉजिटिव है, वो बाकियों को करवा रहा है. ठीक है, नेगेटिव जोन को बाहर लेकर आ रहा है. Always create positive thoughts. Also, ma'am, if there is an old woman, मतलब it is said that the age of the hero should revolve around your age. So if there is an old woman in the picture, so at that moment, am I supposed to bring an outside character or not? No, like if you are seeing it, that's what I'm saying ना. Whatever you are seeing, वही लिखना है. ये जो आप बोल रहे हो, that is sounding like posed. Even though you're posed, you do not have to behave like one ना वहाँ पे. Just write the story जो दिख रही है. अगर 40 years दिख रही है, मेरी जितनी भी स्टोरीज हैं हार्डली उसमें 1-2 मैं मेरे एज का करती हूँ, बिकॉज दिख नहीं रहा मुझे, सब बड़े दिख रहे हैं. तो दैट इज अगेन अ चेरी ऑन टॉप अगर आपकी एज का आप परसीव कर पा रहे हो तो. पर अगर नहीं दिख रहा है तो डोंट क्या बोलूंगी उसको, कि उस पर थोपो मत ही है कि नहीं मेरी एज का होना चाहिए. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. स्टोरी इज इम्पोर्टेंट कि क्या स्टोरी बनाई, कैसे बनाई, कितना क्रिएटिवनेस, कितना एक्शंस डाला, आउटकम क्या निकला उसका, तो यही मैटर करता है. Ma'am, from an old age, I mean an old lady of around 60 to 70 years.
मतलब 60 to 70 years तो यार कुछ ज्यादा ही हो जाएगा. अगर ओल्ड दिख भी रहा है ना बंदा तो यू कैन जस्ट से 45, 50, 55, क्योंकि 60-70 ज्यादा काम नहीं करवा सकते आप, यू नो दैट. फिर आपकी प्रैक्टिकलिटी पे क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई 70 साल की इंसान से काम करवा लो. तो मैम आई सॉ अ पिक्चर, उसमें एक घर था एंड उसके बाहर एक ओल्ड, मतलब घर टूटा फूटा सा लग रहा था एंड उसके बाहर एक ओल्ड लेडी खड़ी थी एंड वो काफी लाइक, उसको आप 40 का नहीं बोल सकते, 78 75 इतना एज होगा. अच्छा, एट दैट मोमेंट क्या करना है? मैं बताऊं, मैंने मतलब एग्जैक्ट स्टोरी मुझे याद आ रही है कि मैंने बनाई थी कि मैंने उसको बना दिया कि शी इज ओल्ड, डेफिनेटली ओल्ड, 70-80 नहीं, मैंने उसको 65 ऐसे 60 to 65 ऐसे बना दिया. और फिर मैं बोला कि वो बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक वुमेन है एंड शी नोज कि आसपास की वुमेन वर्क नहीं कर रही हैं सारे एज ग्रुप्स की. वो सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्टअप मैंने उसको बना दिया था कि वो गई, उसको स्कीम के बारे में पता चला किसी गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट ऑफिस गई, फिर उसकी एज के जितने थे वो भी आए काम करने साथ में, और उससे नीचे एज के जो भी वुमेन थी वहां पे उनको भी एम्पावर कर दिया. मतलब मैंने उसको वो बना दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप का. ऐसा कोई ओल्ड वुमेन दिख रहा हो ना तो आप ऑलवेज यूज SHGs और सम आशा वर्कर्स, ये सब पढ़ने पे आएगा आपको. न्यूज पढ़ोगे ना तो खुद ब खुद चीजें आएंगी कि बूढ़े लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं. इट्स नॉट कि वो बेचारी है उसकी कोई आके हेल्प करेगा, वो ही हेल्प करेगी इवेंचुअली. योर हीरो नीड्स टू बी फ्रॉम द पिक्चर ओनली, दिख रही है जो. या ओके मैम, थैंक यू सो मच. गाइस यही सारी चीज़ें ओपन सेशन में बहुत होलिस्टिकली कवर किया गया है ना. सो वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग चेक करो, है ना. ऐसा नहीं कि हम लाइव क्लास में आएंगे और हम, है ना, देखेंगे भी नहीं कि क्या चल रहा है बाहर. और मैक्सिमम डाउट्स ना 99% आर ऑलरेडी क्लैरिफाइड. चलो ओके. हाय राज. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर. हाँ जी बताइए. मैम जैसे आप टेक ग्रेजुएट हो तो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या ऐसा कुछ क्वेश्चन वहाँ किया गया था कोलकाता में? Yeah, I just graduated in June 2024, अनुराग राइट. तो उसमें मैंने उनने पूछा था कि यू नो सच अ गुड कॉलेज, क्योंकि मैंने कॉलेज का आई स्पोक हाईली ऑफ माय कॉलेज एंड ही सेड कि फिर प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया. एंड आई टोल्ड हिम, मतलब आई हैड एन आंसर कि सर आई वाज प्लेस्ड बट आई डिड नॉट टेक द प्लेसमेंट बिकॉज इट वाज फॉर अ बॉन्ड ऑफ 3 years एंड माय प्रायोरिटी वाज जॉइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस. सो आई वाज वेरी क्लियर अबाउट कि मेरा प्लान बी इज कॉर्पोरेट बट माई प्रायोरिटी, और उसके लिए मैं अभी 1 साल मैंने उनको बता भी दिया कि 1 साल मैं सिर्फ SSB देने का प्लान है मेरा. तो ही वाज क्वाइट सेटिस्फाइड कि अच्छा चलो प्लेसमेंट लग गई थी पर खुद नहीं गई जस्ट बिकॉज SSB देना है. एंड बॉन्ड था 3 साल का तो दैट वाज आल्सो क्वाइट सेटिस्फाइड, मतलब ही वाज सेटिस्फाइड कि चलो बॉन्ड में तो कुछ कर ही नहीं सकते. दैट्स इट. ओके मैम, क्लियर मैम. ओके. हाय निखिल, हाय राज, हाय हर्ष. फटाफट पूछिए. Hi, sir. Sir, ma'am, my doubt is I was practicing more on OIR and it is important for the screening and or else conference. अच्छा, OIR यार शुड मतलब इट इज इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट बट नॉट द ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आपकी स्टोरी अच्छी है, आपने सब अच्छा किया है, तो आई थिंक OIR शायद देखें भी ना, क्या मालूम. और OIR बहुत ही गंदा कर दिया फिर भी सब अच्छा है तो भी आप अंदर हो. आई थिंक OIR आप जनरल प्रैक्टिस कर सकते हो. OIR को इतना लोड में मत लो, जस्ट डू इट फॉर फन. आप अपनी स्टोरी पर ज्यादा ध्यान दो कि क्या स्टोरी बना रहे हो. आई विल टेल यू, मैं कोलकाता का इस बार वाला बहुत ही डिफिकल्ट आ गया था, अजीब सा OIR आ गया था एंड आई कुडंट डू अच्छा उसमें, बट स्टोरी वाज गुड. स्क्रीनिंग तो हो ही गए. और बाकी कॉन्फ्रेंस में मतलब आई डोंट थिंक OIR को आपको इतना वो करने की जरूरत है. एक तो वैसे इजी आता है, अगर गलती से अगर डिफिकल्ट आ गया तो इट वोंट बी डिफिकल्ट जस्ट फॉर यू, सबके लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा. तो OIR इज तो यार इजी थिंग, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट. वर्क ऑन योर स्टोरी, योर नरेशन, दैट शुड बी फ्लॉलेस. बस इस पे ही काम करो. Thank you, ma'am. Jain sir, Jain ma'am. My doubt is that the picture which we are taking in the we are writing story, it should be in the central idea of the story or should be in introduction or in conclusion we can use it. And second is, my second doubt is that if a person is drowning in river, there is only one person, and how we can make it a positive mood in PPT. It is directly in negative mood, like that. Drowning in river. Yes, ma'am. Drowning in river or in a pond.
only one person it is looking in the picture. See, now let me tell you, drowning in river is your perception, right? बट व्हाट आई सी कि वो आया है मस्त, उसको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है और वो वहां पे वो स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है, मे बी फॉर सम स्विमिंग कॉम्पिटिशन. दैट इज माय परसेप्शन एंड दैट इज पॉजिटिव. But ma'am, it is showing that lack of courage, that you are not showing your courage to means saving, and you are escaping from the situation. व्हाट? नो, लाइक मैं बता रही हूँ ना, इट्स ऑल परसेप्शन. यू आर ड्राउनिंग इज अ नेगेटिव परसेप्शन and then practicing for a swimming competition is in positive way में ले जा रहे हो. अगर वो आपको हाथ ऊपर करते हुए भी दिख रहा है ना, तो टेल कि ये कोई स्ट्रोक प्रैक्टिस कर रहा है. some stroke he is practicing time Okay, okay, वगैरह. ma'am. But if I can take one more example, that one person is holding knife and two are standing in front of it, then how we can take this? इसमें बना दो कि some play is going on. स्कूल का कोई प्ले प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये वो ले लिया, एक थीम है कि करप्शन कैसे बढ़ रहा है, वहां से कैसे ऑफिसर. According to me, it is showing that I am escaping from the situation and I am molding it, and I am means not courageous like that. Yeah, showing negative thing is not courageous. That's something very stupid of you if you do that. Because अगर वही तो चेक कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव पिक्चर फेंक के मार रहा है साइकोलॉजिस्ट और तुम नेगेटिव हो जा रहे हो. That is not escaping. That is how you're taking it. अगर सामने बंदा, जैसे अगर तुमको दिख गए, दूर से बंदे दिख रहे हैं कि हाँ they are having some conversation जो हाईली उसमें जा रही है, और तुमने पहले परसीव कर लिया कि नहीं भाई धक्का मुक्की होगी, ये भी तो हो सकता है वो खुद में आपस में सॉल्व करके खत्म कर ले. तो that is, this thing would affect you in your SRT also. Like work on that. Don't see negative things. यार positive ही है सब. It's not like you're escaping a situation. It's like you are seeing something positive even though negative picture है. That's not escape. Okay. Yeah. Okay, and ma'am, my next doubt is that is it necessary to take the picture the central idea, or we can take it in introduction or in conclusion? क्या come again? What? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी जो पिक्चर है, हमें वो सेंट्रल आइडिया में ही बनानी है प्रेजेंट में, या हम उसे पास्ट में ले सकते हैं कि ये कोई पिक्चर थी, ये उसका पास्ट है, ये फिर हम फ्यूचर में स्टोरी बना रहे हैं थोड़ा ऐसे उसी पिक्चर से रिलेट करके स्टोरी. That is तो structure only ना, कि what led to the situation, what is going on, and what will be the outcome. तो वो तो पूरा structure ही वही है, start ही पास से ही करना है. बाकी what is going on should be the maximum part of your story. No, I was saying that you can take example like one person is on bicycle and he is standing with another person, and I can make it like that. It is the conclusion at the end of the story, like they came to an end where they are standing, or I have to make the central idea about this only. हाँ, मतलब you can do that कि जो वो पिक्चर दिख रही है वो एंड गेम है उसका, कर सकते हो ये भी. पर अगर आप बताओगे ना कि सिचुएशन में जो है वो चल जो रहा है वो है, तो वो बेटर रहेगा. लाइक यू कैन डू दिस ऑल्सो, बट व्हाट विल बी बेटर इज कि व्हाट इज गोइंग ऑन को ज्यादा आप बताओ. जो दिख रहा है वो गोइंग ऑन होना चाहिए. बाकी तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. एंड पॉइंट भी हो सकता है कि जो दिख रहा है वो एंड में हुआ. इट्स ऑल राइट. देखो हर्ष, है ना, सिंपल है. द इंस्ट्रक्शन सेज इट वेरी क्लियर. यू हैव टू स्टिक टू द पिक्चर एज मच एज यू कैन, बिकॉज दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स. जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना कि पिक्चर को एंड में या स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, आप खुद सोचो. मैच अगर 22 यार्ड्स के अंदर हो रहा है, आप बॉलिंग जाके पवेलियन में तो बॉल नहीं फेंकोगे, है ना, आपको पिच में फेंकना है. ठीक है, सिंपल एज दैट. आप रनअप लेकर आओगे. रनअप इज व्हाट लेड टू द पिक्चर. जब आप पिच में बॉल फेंक रहे हो, दैट इज व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग इन द पिक्चर. एंड व्हाट इज द लाइकली आउटकम इज, जो भी बैट्समैन को शॉट मारना है, सिंगल रन मारा है तो मतलब आपने जस्ट मैनेज किया पिक्चर. 6 या 4 मारे, बाउंड्रीज मारे, तो यू हैव स्कोर्ड, यू हैव बीन इन द पिक्चर एंड यू हैव. बोलते हैं ना शॉट सिलेक्शन बहुत बढ़िया है. क्रिकेट तो देखा ही होगा आपने, है ना. सिंपल एज दैट. वही पिक्चर है, वही स्टोरी है ना. एंड कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन जो आपने पूछा कि नाइफ दिख रहा है, 2 लोग खड़े हैं. यार देखो, उसमें जैसे निकिता ने बताया वो भी एक अच्छा अप्रोच है. एक और अप्रोच आप इसमें ये ले सकते हो, जिसमें आपका काफ़ी हद तक जो आपका क्वेरी था वो क्लियर होगा इसमें. कि देखो वहाँ पे जब नाइफ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो यू कैन जस्ट मेक कि हाँ इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं वो लोग, है ना, कि कैसे जैसे मान लो कुछ स्पाई वाले हैं या आईबी वाले हैं, या कैसे मान लो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले कुछ गन पॉइंट में सब कुछ निकाल रहे हैं इन्फॉर्मेशंस. ठीक है, ये भी आप करवा सकते हैं. ठीक है, उन्होंने कैसे काउंटर ऑपरेशंस किया, ठीक है, टैक्टफुली परसुएट किया, जो भी आपको माइक्रो एक्शंस लग रहे हैं.
इसमें क्या हो रहा है, आपका काम ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है. सो यू कैन जस्ट मेक इट आउट, ठीक है. और इसमें क्या हो रहा है, पिक्चर में रुक भी रहे हो, आपको लग रहा है ना, पूछा था एस्केपिंग फ्रॉम द सिचुएशन, तो अगर आपको वो कुछ अगर लग रहा है कि नहीं, निकिता जी ने जो कहा थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है, तो अब इस एंगल में भी आप सोच सकते हो. बोथ हैज़ गॉट नो इशूज़, ठीक है. बोथ स्टोरी वर्क्स, शी हैज़ ऑल्सो मेड इट. ऐसे स्टोरीज भी चलती है, ठीक है. जस्ट दैट आपको क्या करना है, उसके एक्टिविटीज़ के थ्रू दिखाना है कि आप उस पिक्चर में बने हो, ठीक है. आप उसको ये भी बता सकते हो कि कैसे सेल्फ डिफेंस की क्लासेस करवा रहे हैं, ठीक है. ये भी हो सकता है. यू कैन जस्ट मेक इट आउट इन सच अ वे, ठीक है. तो आई ओके सर, थैंक यू. वेलकम. हाँ जी, कम ऑन यार, जल्दी जल्दी बताइए. हाँ जी राघव, बताइए. Jain sir, Jain ma'am. So I had a doubt like many of us are in our drop years. So in the interview, the interviewer might come to this point that why you took the drop year. So what could be the convincing points that to put out a point that we are in a drop year? Again, just be confident. I have a friend of mine just got might be joining INA अभी 2-3 दिन में, and he has been jobless for a year. And in every attempt he used to say कि I am passionate about joining the forces sir, मेरा प्लान भी ये है, मुझे MBA कर लूंगा, प्लान बी में कैट दे दूंगा. लाइक अगर वो पूछ रहा है ना कि क्यों ड्रॉप, जब पता है इतना अनसर्टेन SSB, then just be confident sir, I am passionate about it, I am really sure कि इस अटेम्प्ट में मेरा हो ही जाएगा. वो बोलेगा नहीं होगा तो बोला सर मैंने अच्छा किया है, होगा मेरा. वो फिर भी बोले कि अगर नहीं होगा तो क्या, then your plan B is something that he might be interested in. Always be ready with that. बाकी ड्रॉप ईयर को आप ऐसे ही टैकल कर लोगे, बोलोगे ना आई एम पैशनेट अबाउट जॉइनिंग द आर्म फोर्सेस सर, दैट्स व्हाई आई टुक अ ड्रॉप ईयर एंड डिसाइडेड टू गिव अ होल ईयर while for giving SSBs only and focusing on that. And apart from that अगर पूछना चाहे then your plan B should shine there. उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. Okay ma'am, thank you. Correct. Moving on. Hi Nikhil, good evening. Good evening sir, good evening ma'am. So TAT में what usually happens with me कि there are sometimes when picture में is like someone's funeral taking place or there's a picture where I mean एक फोटो है, फोटो पे फ्लावर लगी हुई है and a boy is looking into it. So on that time what I usually do is कि I make it something around health centric, कि someone who is a health officer who saw this problem of hygiene and that and he resolved it by later on. However उसमें I am taking one person from outside, so is it something that I am doing correctly? मतलब what I would like to say that आप पूरा ही आउट ऑफ द पिक्चर जा रहे हो. इतना मैं बता रही हूँ ना, हर पिक्चर में आपको ऑफिसर नहीं दिख रहा होगा और बनाने की जरूरत भी नहीं है. अगर वो एक फूल चढ़ा माला देख रहा है तो माइट बी ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन ऑफ समवन, ऐसे ना एग्जाम के पहले ब्लेसिंग्स लेकर जा रहा है. मेक इट सिंपल, डोंट ओवर डू थिंग्स. जरूरत ही नहीं है ऑफिसर बनाने की. बता तो रही हूँ, अगर दिख रहा है कि सिंपली एक घर का पिक्चर है, वो देख रहा है, आप फोटो घर पे देखोगे ना कहीं, कोई ऑफिसर को क्या मतलब, वो निकल गए चल बसे, सम क्लोज रिलेटिव ओनली राइट, कि वो ब्लेसिंग लेकर जा रहा है, उसने प्रिपेयर किया है, निकलते वक्त का पिक्चर है, बस उसमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करी वो डाल दो और उसने क्लियर कर लिया एग्जाम वो डाल दो. तो वही है, डोंट राइट समथिंग विच इज नॉट रिलेवेंट. मतलब आउट ऑफ द पिक्चर मत जाओ कि ऑफिसर, क्योंकि आप रियल लाइफ से भी तो सीख रहे हो ना. आपने घर पे देखा होगा कि योर फादर इज लुकिंग एट योर, मतलब कुछ भी हो सकता है राइट. डू नॉट राइट समथिंग दैट इज नॉट विजिबल टू यू जस्ट बिकॉज ऑफिसर ही बनाना है, जस्ट बिकॉज एक्शंस डालने हैं. नॉर्मल लाइफ से भी तो एक्शंस आते हैं ना. ब्लेसिंग्स लेना भी एक्शन है, और क्या उसके पहले के एक्शंस डाल दो कि उसने प्रिपेयर कैसे किया, है ना. तो दैट कम्स टू द प्रीवियस क्वेश्चन कि जो दिख रहा है वो एंड में हो रहा है. इसमें आप बीच का कुछ बना ही नहीं सकते क्योंकि वो देख ही तो रहा है ना बस. सो दैट इज समथिंग यू कैन डू. एंड में आप ला दिए कि सब प्रिपेयर करके वो निकल रहा है सेंटर के लिए, ब्लेसिंग ली उसने एंड ही क्लियर द एग्जामिनेशन. एग्जाम कैसे प्रिपेयर किया वो एक्शंस आ जाएंगे आपके उसमें. Understood, thanks man. Hi Atharva, we will take this last question then we will close. Ma'am, how to contribute in a GD? What are the points that we should look for to contribute most to GD? Make a list of important topics, corruption, women empowerment, then your geopolitical issues, जो भी चल रहा है, and write notes about it.
कि ये तो मुझे बोलना ही है। और राइट स्टैट्स, मैंने क्या किया था, स्टैट्स बना लिए थे सारे। एक टॉपिक लिखा, उसके नीचे सारे स्टैट्स जो जो मुझे याद करने हैं। एक टॉपिक लिखा, सारे स्टैट्स। तो अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ ना, दैट इज तो माई ओपिनियन, दैट वुड डेवलप while you read some articles, read articles, develop the habit of reading articles, उससे आपका ओपिनियन डेवलप होगा। एंड टू ओवरशाइन योर पॉइंट्स, ज्वाइन द स्टैट्स, इससे आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, वैल्यू भी ज्यादा होगी आपके पॉइंट से। स्टैटिस्टिक्स का एक लिस्ट बनाओ, और स्टैट्स याद नहीं भी हो ना तो इंडेक्स याद कर लो कि इस इंडेक्स में मुझे ये बताना है रैंकिंग, या फिर ऐसा बताना है कि वुमेन एम्पावरमेंट या फिर वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इतना बढ़ गया है। तो ये जो वर्ड्स है ना, टर्मिनोलॉजीज, ये आएंगी जब आप इनको लिख लोगे एक बार कहीं पे। तो राइट नोट्स, और ऐसा नहीं है कि अगर ये टॉपिक आ गया जीडी में तो एग्जैक्टली यू शुड बी रिजिड अबाउट कि ये टॉपिक तो आया ही नहीं। उसको रिलेट कर दो कहीं ना कहीं, और स्टैट्स बता दो, कहीं ना कहीं तो रिलेट कर ही जाएगा ना। दिस हैबिट ऑफ रिलेटिंग थिंग्स विल कम विथ रीडिंग, डेवलप रीडिंग हैबिट्स, हो जाएगा जीडी। Okay, thank you. Correct. So guys, I hope there are no other queries and we'll see the chat as well. किसी को कुछ पूछना है तो फिर भी पूछ सकते हैं। इन डेड बॉडीज रिलेटेड पिक फैमिली और रोडेंट, ठीक है। आफ्टर 3-4 लाइंस बाद पिक्चर पे आ जाना चाहिए। हाँ जी इंट्रोडक्शन यार। Hello ma'am. Last talk. अर्पण बताइए। Ma'am, if someone had not participated in any extracurricular activities or sports in school or state level, so what should yours mention in PIQ form in the achievement section? So if ma'am, to get a good impression in interview, and if it get blank, then will it make a false impression in interview? Being a candidate who's aspiring for some SSB ना, तो आपको like you should have taken part in some curricular activities, and if you have not, then don't be underconfident about it. कुछ भी लिख दो यार, कुछ तो भी किया होगा, कुछ तो भी रहे होगे, कुछ ना कुछ तो इंसान मतलब पीयर प्रेशर में ही पार्टिसिपेट कर लेता है, सम डिबेट कॉम्पिटिशन या कुछ में भी, किसी भी ईयर में किया हो, लिख दो उसके बारे में। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अभी रिसेंट वाला हो, पुराना भी कुछ भी लिखा हो ना, कभी शायद टीचर्स डे में ही डांस कर लिया हो तो वो लिख दो कि भी डांस ग्रुप समथिंग, कुछ तो भी किया ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि बस बंदा पढ़ रहा होता है, कुछ ना कुछ तो किया ही होता है, इतना ही पुराना हो लिख दो, है ना। देखो, you do not need any certificate or anything as such, ठीक है। आपको हर चीज का सर्टिफिकेशन वैलिडेशन नहीं चाहिए। अगर आपने जिंदगी में कुछ भी किया है, जैसे मान लो बहुत लोग ने है ना चलते फिरते बैडमिंटन खेला है, मतलब बस वही है कि हमने कोई नेशनल्स में नहीं खेला है, स्टेट में, स्कूल में भी नहीं खेला है, कोई बात नहीं, गली मोहल्ले में अभी भी खेल रहे हो तो जस्ट मेंशन बैडमिंटन, फ्रेंडली मैच, लोकल टूर्नामेंट, जो भी लिखना है, एंड जस्ट गेट टू नो एवरीथिंग, जैसे निकिता कह रही है। क्योंकि देखो यही चीज़ है, हम एक ही चीज़ कहते हैं, कल को जब आप भी रिकमेंड होंगे ना, आप भी यही चीज़ कहोगे, भले आप यहाँ से पढ़ो या कहीं 1000 जगह से पढ़ के आ जाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 90% थिंग्स आर वेरी सेम, द 10% थिंग इज योर ओन कॉन्फिडेंस एट ग्राउंड, है ना। कॉन्फिडेंस तो लेके नहीं आया जा सकता, है ना। यहाँ निकिता के खुद का कॉन्फिडेंस है, मेरे पास खुद का है, और यहाँ जितने लोग भी कैंडिडेट्स बैठे हैं सबका अपना अपना लेवल है, ठीक है। सो आई वुड से यही है। लास्ट क्वेश्चन मैम। हाँ जी Ma'am, in GTO tasks, especially in PGT, HGT or any obstacle race, if any candidate is not able to present or express his ideas and cooperate in the group, and what can be the other option to give a good performance to the assessor? Don't speak, just do. नहीं बोल पा रहे कि ऐसा करना है, जस्ट उसको बोल गिव मी द रोप, बस इतना तो बोल पाओगे ना, पास मी द बल्ली, इतना तो बोल ही लोगे, देन जस्ट इम्प्लीमेंट इट, डू नॉट स्पीक। और बोलने वालों को तो वैसे भी लोग सुन नहीं रहे होते, जो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है ना वहाँ पे, उसी की वैल्यू है कि भाई बोल तो सभी रहे कि लेट मी डू इट, यू जस्ट गो एंड डू इट, दैट्स इट। Thank you, ma'am. Hi Yashish, this will be the last question. Good evening, ma'am. Good evening, sir. I had one doubt. While writing that, I came across some problems with when I'm making the sentences. They're coming out like reduces, increases. These types of words are very frequent in my VAT. So, how can I come across with some other subsequent words? मतलब reduces, increases, like what I'm getting is जैसे कि ma'am, जैसे कि if there is a word, it is stress. So I can write meditation reduces stress.
So this reduces thing is very frequent in my VAT. So will it be a problem? मतलब frequent मतलब how much frequent? There are 60 words, right? You can't मतलब 10 बार लिख Yes, देते हो क्या ma'am. reduces? I mean that's not possible. हाँ मैम, शायद हो भी जाता है ज्यादा बार. Like if I'm practicing, it reduces, either reduces or increases. Not a So problem, yeah, it's not a becoming problem. a bit habit. If you are relating, that shows your relatability ना कि योगा से आप स्ट्रेस रिलेट कर रहे हो, मतलब that shows your awareness also कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, आपको पता है इसके बारे में. That's your observational skills and that does not matter अगर वो सच में relatable है. पर आपने just fitting sentence लिख दिया कि reduces मेरे को पता है, तो आप बस मतलब उसके synonyms ढूंढ लो अगर आपको reduce इतना नहीं पसंद आ रहा तो. बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इट्स ऑल राइट. एग्जैक्टली यार देखो, मैम इससे बस यही डाउट था. ध्यान दो कि टीएटी में ज्यादा काम करो बिकॉज वैट एसआरटी आर कंफर्मेटरी एंड देन एसडी उसका भी कंफर्मेटरी है. सो लोग अपना दिल दिमाग जहाँ लगाना है वहाँ ज़्यादा लगाइए एंड छोटे मोटे जैसे ओवरकम जैसे ये कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये सब सिनोनिम्स यूज़ करो. या फिर अगेन जैसे निकिता डिड एंड इवन ड्यूरिंग माई डेज ऑफ प्रिपरेशन, आपको दूसरों के, भले वो फ्रेशर हो रिपीटर हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है किसी का, उससे चीज़ें देख लो, सीख लो. काफ़ी लोगों के वैट बहुत अच्छे होते हैं नेचुरली, या बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ के या मूवीज़ देख कर, जो भी रीज़न है, ठीक है. तो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट, है ना. आपको लग रहा है आपने ये सोचा, ठीक है, ये बंदा क्या सोच रहा है, देखते हैं, है ना. द ग्रुप इज़ देयर ओपन फॉर ऑल, ठीक है. तो आप लोग वहाँ भी पूछ सकते हो, ठीक है. चलिए, Sir, one doubt, last doubt. पूछिए. Sir, in SRT, we have to express the quality or the number of the questions we have to attempt, sir. This question For- is your own or from on behalf of someone else? Because I hope, है ना. No, sir. As per the timing, I am writing only 28 words, sir. 28 questions in the SRT, sir. Around. Then yeah, you have to increase. See, there is no limitations or there is no foundation that you have to do all 60, है ना. तभी नहीं हो पाओगे, मतलब तभी हो पाओगे ऐसा करके कहीं लिखा नहीं है. It's just that more the quality, है ना. And again, quality and quantity अगर दोनों साथ साथ है तो बहुत बढ़िया है, excellent, ठीक है. अगर मान लो क्वांटिटी नहीं हो पा रहा, इट्स स्टिल फाइन. सी आई विल, देखो यहाँ पे निकिता जैसे उन्होंने मेंशन किया, शी डिड 60 एसआरटी, शी गॉट रिकमेंडेड, ठीक है. लेट मी टेल यू, मैंने 31, 32 और 36 एसआरटी गेन माई 3 रिकमेंडेशन एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2, 4 and 5 बैक टू बैक, ठीक है. तो इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा करना है ना. और ऐसा भी नहीं है कि देखो आप 20 में करके छोड़ दोगे, दैट इज़ अगेन वो फिर ज़्यादा ही प्रैक्टिस की कमी है. और मेरे साथ ऐसा होता था, जब भी मैं 40 से ज़्यादा करता था तो आई यूजुअली गॉट कॉन्फिडेंस आउट, सो आई नेवर ट्राइड मोर देन दैट, ठीक है. तो इट डिपेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन सेफ स्कोर, ठीक है. और दैट्स इट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज व्हाट विल मेक यू सेल थ्रू. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, so I hope guys you all enjoyed the talks because काफ़ी कैंडिडेट्स ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, है ना. जनरली और भी गेस्ट टॉक्स होते हैं तो उसमें इतने डाउट्स तो आते नहीं हैं. आज शायद, है ना, मैम के इनसाइट्स इतने अच्छे लगे आप सबको कि, है ना, भर भर के डाउट्स ही डाउट्स, ठीक है. सो आई होप यू एंजॉयड एंड, है ना, लव्ड द वे शी टोल्ड, है ना, द आंसर शी मेंशन्ड, क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है. बिकॉज सी यही है, दीज ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स. काफ़ी लोग कहते हैं कि सर इनको बुला के क्या फ़ायदा, है ना. ऐसा नहीं है. काफ़ी कैंडिडेट्स सोचते हैं सर पढ़ा दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज पढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कभी कभी देखो वही चीज़ें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कैसी होती है. ऑन ग्राउंड जीरो यू विल फाइंड बहुत सारा चीज़ प्रैक्टिस करके जाता है, बट हाफ ऑफ द थिंग्स विल कम नेचुरली, ठीक है. बस बोलते हैं ना कि हाँ आप ऐसे करके जाओ, बोलते हैं ना कोचेस डोंट प्ले, है ना. हम भी आपको ये बता रहे हैं, बट कभी कभी ऑन द ग्राउंड बहुत सारे साइमल्टेनियस चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट विल बी, है ना, डिस्टिंग्विशिंग यू फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स. काफ़ी लोग जैसे होते हैं ना इतना ज़्यादा कोस्ट हो जाते हैं, है ना. इवन हम कल्ट में भी मेक श्योर करते हैं कि इस तरीके से ना सीखे कि भाई ये चीज़ में यही बनानी है. आप नेचुरली जो कर रहे हो वो करो, बट हाँ मेक श्योर दैट कि आप बेसिक इंस्ट्रक्शन के लाइन लाइन में. सो थैंक यू सो मच निकिता फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड शेयरिंग योर लवली, ना, लाइक talks as well as time because you are very occupied. So one last thing which you would like to share to all the candidates, कुछ कहना चाहोगे before we close this session? Just make sure, yeah, you are true to yourself and practice. Practice makes a man perfect is not just a saying, it is practical. So practice करो and you will get through all things. Yeah. Correct. So I hope guys, है ना, जैसे मैम ने बताया आपको भी मेक श्योर करना है कि वही चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी है.
Thank you so much, ladies and gentlemen. So she was Miss Nikita, thrice recommended, twice for Navy, once for Army, and she will be joining Academy soon. So we wish her all the very best for all her future endeavors, and let's hope कि वो और भी recommendations लाए अगर उन्हें मन करे SSB जाने का. और इसके अलावा she will also be there, है ना, वो ग्रुप में है. अगर आपको लग रहा है कुछ डाउट्स वाउट्स पूछना तो you can just, है ना, I will share on behalf of you. ठीक, कुछ अगर पूछना भी है, ठीक है. चलिए, so wishing you all the very best, Nikita. Thank you. Bye. Bye. Night. Thank you all the best. And Yeah. good night, guys. Take care. Jai Hind. Bye bye. Good night, sir. Join.